Next, I will share not only this handwritten material, but I will share printed material that I have prepared for the subject. आपके subject के लिए मैंने जैसे notes होते हैं ना proper, वैसे material भी बनाया, वो भी दूंगा. लेकिन मैं आपको एक बात assure करता हूँ, कि जो यहाँ notebook से पढ़ाया जाएगा, complete आपको आपके सारे topics cover किए जाएंगे. ठीक है. सो वो मैं हालांकि शेयर करूंगा, बट मैं आपको ऐसा रेकमेंड करता हूं, आप ये जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वहां से लिखेंगे. दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, आई विल राइट एवरीथिंग एंड विल शेयर विथ यू, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू विश दैट नहीं सर हमको लिखना है थोड़ा, in fact I will recommend few topics जहां हम important algorithms करेंगे, जहां हम important program लिखेंगे. मेरा ऐसा recommendation है कि आप उसको लिखें साथ ही साथ. I request you to prepare a notebook. This notebook will be with you throughout your life. Yes, you heard me right. You have two subjects in this year. In semester 3 you have data structure, and in semester 4 you have analysis of algorithms. Trust me बेटा, आप मास्टर्स करने जाएं, आप जॉब पे जाएं, ये दो सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. So I just need one assurance from you. When I teach this subject, I will not teach you only exam point of view, but concept point of view that will help you in GATE, that will help you in your masters as well as your job. Now, during this process, there might be some concept which are difficult, but necessary for you to understand. And I need one assurance from you that I should not hesitate in teaching such concept. Are you okay with this? Even though they will be difficult, but like the way I said, I am teaching comms, supposed to be the best batch of VIT. And when I am teaching comms, I should not hesitate to teach good topics. Is it okay? Yes, definitely, sir. Yes, Beta. So with this assurance from your side, let me revise what we did last time. Should we revise? Let us revise a bit. Yes, Yeah. sir. Okay. Yes, sir. So in next 10-15 minutes, let me revise whatever we did. And today's session, I will continue with pointer concept, because there were few students of comms with me during my SPA CP batch, जहां मैंने pointers के, मैंने array को pointer बहुत अच्छे से पढ़ाया था. I mean, they will confirm this. And मैंने dynamic memory allocation के program भी लिए थे, because like the way I said कि मुझे पता नहीं आप DS मेरे से पढ़ते कि नहीं पढ़ते, but I always wanted the student to learn those concepts. So when it comes to data structure, this subject will be with you throughout your life. मुझ पे भरोसा मत करो. कोई तुम्हारा सीनियर है या भाई है, बहन है, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या फाइनल ईयर में है, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है. आपके जॉब और टेक्निकल इंटरव्यूज में जितने भी क्या बोलते हैं, ड्रीम कंपनीज होती है ना बेटा, ड्रीम कंपनीज ज्यादा पैकेज वाले, उनके टेक्निकल इंटरव्यूज में दो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एक तो जावा, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर. और गेट में बहुत ही अच्छा वेटेज है. आई टेक गेट लेक्चर्स इन विद्यालंकार, सो आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट. नेक्स्ट, फिर हमारी शुरुआत यहाँ से हुई थी. लेट मी रिवाइज दोस थिंग्स. It all started with this concept, data structure. What is data structure? It is a mechanism to organize data. Now, why do we need to organize things? So that it can be retrieved easily. Now, when we started with data structure, we talked about only linear data structure in that lecture. What is linear data structure? My elements in linear data structure are arranged in a linear sequence. There is a linear sequence. There might be doubt. There might be doubt in few students कि sir, can you explain us non-linear sequence that will help us to differentiate between linear and non-linear sequence? Don't worry, I can understand आपको क्या doubt हो सकता है, and I will definitely address your doubt.
द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो मैंने आपसे कहा, दैट वाज स्टैक. मैंने कहा बेटा इट विल ऑपरेट इन LIFO मोड. डोंट वरी, टुडे वी विल डू ADT and if possible program for the stack. Our first lecture ideally, our first topic ideally for the syllabus, it starts with stack. Now मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा एप्लीकेशन बताया था. What is stack? हमने तो कभी यूज नहीं किया, हमने तो सी का प्रोग्राम लिखा, हमने तो कभी स्टैक नहीं बनाया. ना बेटा ये जो डेटा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, जब भी मैं बात करता हूँ स्टैक, क्यू, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर जरूरी नहीं कि आप बनाएं. अच्छा सर, अगर जरूरी नहीं कि हम बनाएं तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? Why are we learning these topics? See, we want to understand how machine uses these data structure. So when I cited you this example of stack data structure, my intention was you should understand whenever we make function call, how those function calls are traced. I have taken this one example where I had a function main. Main made a call to function f1. My control goes to f1 function. In f1 function, I made a call to f2 function. My control goes to f2 function. Now suppose this is the last function to be called. मैंने आपसे कहा once f2 gets completely executed, the control will return back to f1. See here, when control returns here, it is actually in f1. When f1 completely executed, the control return here. Here means main. Now ये हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था क्योंकि हमारे पास आंखें हैं, दिमाग है, हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं. The question is how my machine will understand, how my operating system will take care for this. So I cite an example. I hope I'm making sense. I hope I'm making sense. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So I cited you one example where I said कि my operating system creates a stack and it simply puts the call in the stack. Now you can visualize a stack with a kind of a cylinder or a box which is open at one end only. So since it is open at one end only, which we call it as top end, so all the insertion and deletion will happen at top end. The insertion operation is stack is known as push operation. The deletion operation in stack is known as pop operation. Now the question is why only from one end? As we know, there is only one end open. Now not necessarily you may represent stack like this. You may represent stack like this also. Even this is stack, my dear, because the insertion and deletion will happen from this open end only. This open end is top end. Suppose I inserted first element P1, it will go to the end, then P2, then P3, then P4. So the last element to be inserted is P4, but the first element to be popped out will be P4. I hope you all agree to this. Yes, sir. Leave Yes, sir. Yes. last in, first out. Now, whenever we write program like this, we never know कि actually हो क्या रहा है. Correct? We just write the program and we are happy with the execution. I wanted you to visualize in behind the scene, there is someone called a stack created by the operating system who will manage this function call. So whenever we learn this data structure, the question might strike to you, why are we learning this data structure? Is there any need for me to explicitly use it? May not be, maybe. There may be some problem in real life. आपको रियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होंगे जिनको सॉल्व करने के लिए हम स्टैक यूज करेंगे, वो प्रॉब्लम मैं आपको दूंगा. बट कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम होंगे जहां हमको नहीं जरूरत है, लेकिन हमें एज अ कंप्यूटर इंजीनियर ये अंडरस्टैंड करना है कि ये बैकएंड में काम कैसे हो रहा है. मैं बैंक में काम करने वाला कोई ऐसा क्लर्क नहीं हूं जिसको मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ये लो मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दो और पैसे विड्रॉ कर दो. वो जो क्लर्क है बेटा, उसको कुछ
यूजर इंटरफेस दिए हैं जिससे वो अपना काम करता है, उसको ये पता नहीं कि बैकएंड में क्या हो रहा है, बट एज एन इंजीनियर वी शुड अंडरस्टैंड। सिमिलरली क्यू, मैंने कहा इट वर्क्स इन फीफो मैनर। एन एग्जाम्पल मैंने प्रिंट सर्वर का दिया, आई होप यू आर ओके विद दिस। मैंने कहा अलग अलग मशीन जो प्रिंट देंगे, मेरा प्रिंट सर्वर उसको एक क्यू में इंसर्ट करेगा। क्यू में इंसर्शन रेयर एंड से होता है, द एंड इज नॉन एज रेयर एंड, एंड डिलीशन फ्रंट एंड से होता है। आर यू ओके विथ इट? Yes, sir. Yes, sir. Linked list, well, that was the beauty, and we studied this. Now you know what, just take for the example, if I want to build a stack or if I want to build a queue, मुझे queue बनाना है, मुझे stack बनाना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? I need certain raw material. That raw material will be array, ideally. Yes, मैं जब आपको प्रोग्राम कराऊंगा, पहला प्रोग्राम चैप्टर नंबर 1 में, तो we will create queue using array, we will create stack using array. तो देखो ना, मैंने लिखा है टू क्रिएट स्टैक एंड क्यू वी नीड रॉ मटेरियल. माय रॉ मटेरियल कुड बी array, but in chapter number 2 we will study a new raw material that will be linked list. Now what is difference between them? We discussed, once we create an array, it will static in size. I cannot increase the size of the array, I cannot decrease the size of the array. Correct? It cannot grow and shrink. And one more disadvantage of array is it needs contiguous memory. If I want to create an array of size 100, and suppose if integer needs 2 bytes, then how much contiguous memory we will need? 200 bytes. Correct? Yes, sir. Now, suppose I decide, no, I want to add a few more elements. I cannot do this with array because the size is fixed. I want to remove certain element. This will not decrease my array size. Yes, but we can do that. We can make our data structure grow and shrink, which does not need contiguous memory. And this is implemented using linked list. So let me take one more step and give you certain declaration. Ideally, in real life, whenever we create, please listen to this very carefully. Ideally, in real life, whenever we create stack, whenever we create queue, we will do it using linked list. Is this okay with it, everyone? Yes, Yes, sir. yes, sir. And then we just saw some comparison between array. Please remember, I will spend few more minutes on array because there is something which I want to share with you, which is very important. Suppose I create int 5. Every array will have a base address. Address of the first element of the array is known as base address. Correct? If the array is of integer, and if the size of integer is 2 byte, then if it is 2020, this will be 2022 468. Remember one thing, this is very important question for interview. ये जो इंडेक्स है ना 0 1 2 3 4 5, ये झूठ है. ऐसा इंडेक्स कुछ भी बनता नहीं है. ये हम इंडेक्स क्यों बनाते हैं बेटा? बिकॉज जब भी हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, वी विल एक्सेस इट टेकिंग बेस एज अ रेफरेंस. प्लीज अंडरस्टैंड डेटा. हम बेस को एज अ रेफरेंस यूज करते हैं. मतलब जैसे समझो एक बिल्डिंग है जिसमें 10 फ्लोर का एक बिल्डिंग है. बिल्डिंग का नाम है अजय अपार्टमेंट. तो वो जो अजय अपार्टमेंट है ना बेटा, वो ग्राउंड फ्लोर का एड्रेस, वो अजय अपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर का नाम है. तो फर्स्ट क्या होगा? अजय +1. सेकंड क्या होगा? अजय अपार्टमेंट +2. सो बेसिकली एरे का नाम जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का ही नाम होता है.
एरे का नाम जो होता है फर्स्ट एलिमेंट का ही नाम होता है, इसलिए याद है अगर आप एम्परसेंड ए ऑफ 0 बोलते हो क्या मिलेगा आपको, बोलो कम ऑन एवरीवन टेल मी, एम्परसेंड ए ऑफ 2020, yes, but if I simply write a also then too it is 2020. so array का नाम array का बेस एड्रेस होता है, बेस एड्रेस मतलब एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द array. I hope everyone agreed to this. Yes, sir. Yes, sir. Now here we needed 10 byte of continuous memory. If the same I want to implement using linked list, this is what we discussed. 10 is here, 20 is here, 30 is here, 40 is here, and 50 is here. So every node will have two things. Every node will have, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, every node will have data and address of next element. Every node will have data and address of next element. So with this we can create chain 10 ye 2020. So I will access 10 and using 2020 I will go to the next memory here where I will find 20 and address of the next element 3030. I will reach here where I will find 30 and 4040 address of the next element. I will reach here 40 5050. I will reach here 50 and this null represents ki it is the end of the linked list. So I have taken the liberty to draw it something like this. So if this is node and the nodes are connected through the address, we call it as chain of node linked list. Agreed? I hope everyone understood this. It has been a week since we discussed this, so I thought let us revise from this because actually our lecture starts from today. Is it okay? Everyone understood? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Wait, now tell Yes, me, sir. let me ask you a question. Now there is a catch here. I thought you might ask me. Tell me, what is the size of a pointer? Are you aware of the size of the 2 pointer? bytes. 2 2 bytes. bytes. 2 bytes. Now please, जैसे मैंने कहा बेटा, you are com student. So it is my moral obligation and responsibility increases when I am teaching com students because I want you to be fully aware of every fact of the technicalities and details. Now you should never bluntly say 2 byte beta. You should say the size of the pointer will be same as the size of the integer data type in the system, because in the system if the size of integer is 4 byte, then the size of the pointer will be 4 byte. I hope you got it. Yes, sir. Because let me show you something. बेटा जब आप डॉस मोड में काम कर रहे हो, जब आप टर्बो सी पे काम करते हो ना, तो वो 16 बिट का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ना. व्हाट इज एनवायरनमेंट? सी हम बोलते हैं ना हमने गेम इंस्टॉल किया, हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ऐसे हम टर्म यूज करते हैं. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, जब हम ये ऐसा टर्म्स यूज करते हैं ना बेटा कि हमने गेम इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करना मतलब क्या होता है? on my operating system I am creating an environment which is conducive for that application to run. मैं जब कहता हूँ C इंस्टॉल किया, मतलब मेरे C ड्राइव में मैं C प्रोग्राम बना सकूं, कंपाइल कर सकूं और एग्जीक्यूट कर सकूं. We will have an environment which is conducive for the application to C application to be created, compiled and executed. This is what you mean by installing. When you install a game, see when you installing not necessarily means running. When you simply install means now you can run since you have installed. Once you install an app means you can use that app. So when you install the app,
in your system, you have created an environment conducive for it to run. I hope I'm okay. Yes, sir. So बेटा क्या होता है, देखो अभी मैं टर्बो सी यूज कर रहा हूँ, आपको दिख रही है? Yes, sir. I want to display the size of int x is %d, और कैसे साइज पता चलता है? साइज ऑफ, ठीक है? I hope this is clear with everyone. Hello. Yes, sir. Yes. Okay. We compile it. Okay, and let me execute. Now, what is the size of x? 4. It is 4 byte. Now, यहाँ मैंने x लिखा. Suppose I write int explicitly, तो मुझे ये int x भी लिखने की जरूरत नहीं है. मुझे ये जो dev C++ है, इसमें मेरे को C का साइज चाहिए. देखो 4 ही आ रहा है. मतलब ये जो C प्रोग्राम के लिए एनवायरनमेंट बना हुआ है, यहाँ पे इंटीजर का साइज 4 बाइट है. सो नाउ ओके एवरीवन, मैंने लिखा int asterisk x एक पॉइंटर है. क्लियर? इतना तो समझा है आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. सी मैं एकदम बेसिक से मैं इतना श्योर करता हूँ कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा. आप क्या बोल रहे हैं साइज? 8 bytes. 8 bytes. 8 बाइट. क्यों ऐसा बेटा? अच्छा, मैं इधर अगर नोट कर दिया ना, एट बराबर है बेटा. Yes, sir. मैंने कैरेक्टर पॉइंटर बोला ना बेटा. देखो आप लोग ने 2 बाइट्स बोला होता तो 4 ही होता. अभी भी 80 आ रहा है. यानी यहाँ साइज, ये जो मेरा एनवायरनमेंट है, ये मेरे पॉइंटर को इंटीजर का डबल साइज देता है. बराबर है कि नहीं? Yes, sir. हाँ. तो आप बोलोगे सर फिर हम करें क्या, हम बोले तो बोले क्या? मैंने बोला ना, आपको इतना बोलना है, आपने जो बचपन से पढ़ा है कि भाई पॉइंटर का साइज, अभी जस्ट इमेजिन करो, मैंने जो dev C++ एनवायरनमेंट लिया, उसमें इंटीजर का साइज 4 बाइट हो रहा था, पॉइंटर का साइज 8 बाइट हो रहा था. अग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Now please try to understand. If in dev C++ I create an array of integer, 5 integer, कितना मेमोरी जाएगा? 4 into 5, 20 bytes. Yes, sir. Yes, sir. Now come on, tell me, यहाँ कितना जाएगा? इसको 4, इसको 8, यानी एक नोड के लिए कितना जाएगा मेमोरी? 12. ऐसे कितने नोड हैं? 4. 5 बच्चा. हाँ. कितना मेमोरी जाएगा बेटा? 60 bytes. 60 bytes. यहाँ कितना मेमोरी जा रहा है? 20 bytes. 20 bytes. फिर भी सर आप बोल रहे हो कि लिंक लिस्ट ही यूज करने का रियल लाइफ में. बिल्कुल बेटा. क्यों मालूम है? ये जो 20 बाइट्स है ना, वो कंटीन्यूअस चाहिए मुझे. ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है जहां मैंने एरे का साइज 5 दिया है. रियल लाइफ में कभी भी हम 5 का या 10 का ऐसा बनाते ही नहीं है. जब भी हम कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सपोज एरे का साइज मैंने 1000 दे दिया, फॉर एग्जांपल 10,000, मैं आपको सॉर्टिंग का प्रोग्राम कराऊंगा, वहां हम एरे का साइज 20,000 देंगे. 20,000
20,000 एरे का साइज। फिर एक बच्चा मुझसे पूछेगा सर 20,000 एलिमेंट हम एरे में एंटर कैसे करेंगे, बराबर ना? यस। अरे मैं तुमको कुछ, हाँ डोंट वरी यार, तुमको एक से एक चीज बताऊंगा ना, मजा आएगा। हम जुगाड़ करेंगे 20,000 एलिमेंट एरे में एंटर करने के लिए, डोंट वरी, वी विल डू दैट प्रोग्राम। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल प्रोग्राम। तो अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर 10,000 इंटीजर है तो एरे में 10,000 इंटू 4 40,000 बाइट्स कंटिन्यूअस चाहिए। Now allocating 40,000 bytes contiguous is a huge task. लिंक लिस्ट में हमें बाइट तो ज्यादा लगेगा, जैसे 10,000 इंटू 10,000 into 1,20,000 bytes जाएगा, 3 times more memory will be needed. I agreed, but remember that 3 times more memory is not needed contiguously. Yes. Yes sir. Yes sir. तो इट इज ऑलवेज बेटर इन नेक्स्ट सेमेस्टर। आप लोग को एक सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां आप लोग को ओएस अभी नहीं है ना, नेक्स्ट सेम में ना? हाँ। तो वहां पे आपको समझेगा बेटा कि मेमोरी एलोकेशन में सेगमेंटेशन करके कॉन्सेप्ट है, जहां हमारे पास छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स हमेशा पड़े रहते हैं, हम उसका यूज कर सकते हैं ना लिंक लिस्ट में बेटा। थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हो आप। यस सर। ओके, तो अब मैं और ज्यादा बोर नहीं करूंगा तुमको, यहाँ पे ये मैं आगे और बात करूंगा, अभी तो बहुत लंबा समय है। सर। हाँ बेटा। सर मतलब पॉइंटर का साइज इज इक्वल टू डबल द साइज ऑफ इंट ना? नॉट नेसेसरली, दैट्स व्हाट आई सेड बेटा। अगर आपको कोई भी पूछता है ऐसा ना, व्हाट इज द साइज ऑफ द डेटा टाइप ना बेटा, बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द मशीन, द एनवायरनमेंट वेयर इट इज एग्जीक्यूटेड। सो आइडियली व्हाट यू शुड से, आइडियली इन एन इंटरव्यू ऐसा बोलने का, देखो मैंने शायद आपको बताया होगा कि नहीं, लेट मी चेक। मैंने पॉइंटर के टाइम आपको बताया क्या? ये मैंने पॉइंटर स्टार्ट किया, साइज ऑफ पॉइंटर मैंने डिस्कस किया कि नहीं आपसे? डिड आई डिस्कस? हाँ देखो, मैंने ये बताया होगा पॉइंटर विल ओनली स्टोर एड्रेस, ये मैंने आपसे कहा। यस सर। नाउ बेटा पॉइंटर ओनली स्टोर्स एड्रेस, एड्रेस का टाइप क्या होता है? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, हाँ। हेक्साडेसिमल इज अ टाइप ऑफ इंटीजर ओनली। यस। सो हम बोलेंगे the size of pointer is same as that of integer. There are some exceptions, नहीं समझे? But whenever we are talking, we will not talk about those exceptions. Are you getting? Because अगर आपको सच बताऊं, बच्चों से ये क्वेश्चन पूछना what is size of integer itself is a very foolish question if the teacher is aware that it is actually not same in every machine. समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। हाँ, बिकॉज जब मैं सी, तो फिर भी अगर आपको एक बात समझनी है, नॉर्मली ऐसा देखा जाता है। मैं आपको एक जनरल स्टेटमेंट देता हूं, व्हाट इज साइज ऑफ पॉइंटर। लेट मी आज के लेक्चर के लिए मैं एक सेक्शन बनाता हूं, लेक्चर 2 DS, today is 02 September 2021. Let me start today's session with this. Size of pointer in C is 8 bytes on 64-bit system or machine. Now henceforth, whenever anyone asks you, just give this statement. If my machine where I am compiling and executing my C program is a 64-bit machine, अब आजकल हमारे OS तो 64-bit रहते हैं ना बेटा? Yes sir. Can you visualize what I am saying? 64-bit. आप कोई सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करते हो तो देखो विंडोज 64 आता है 64-bit। आप लोग ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करते हैं ना, इट इज स्पेसिफिक टू हाउ मेनी बिट योर ओएस इज।
32-bit, 64-bit. Can you visualize what I'm making a statement here? Yes, sir. ये प्रोसेसर साइज है ना? Yes, बेटा, साइज ऑफ माई ओएस. तो ये क्या बोल रहा हूं मैं, आज के बाद आपको अगर कोई पूछे, व्हाट इज साइज ऑफ पॉइंटर इन सी 8 bytes if my machine is 64-bit, is it okay? ये आप लोग को याद रहेगा and you will forever. So अगर मैं बोलूं int asterisk p, char asterisk p, float asterisk p, कोई भी हो, long asterisk p, किस and so on, कोई भी पॉइंटर है, size will be 8 byte on 64-bit machine. I hope it is clear. Yes. Chalo, let me go back and finish where what we started. Okay, you know, then in last session, then I have taken this liberty of explaining you how insertion and deletion is easy. Suppose there is a linked list and I want to remove this 30. I can simply make this 20. Suppose this is 202030304040 505060. मैं ये फिर से ऐड कर दूंगा पेज. हाँ, सो यहाँ पे क्या है 3030, यहाँ पे क्या है 4040 5050. Now if I want to remove the 30, I can simply override this 4040 with 5050 and this will make this pointer point here and I will remove this pointer. So I have deleted this node. Can you visualize this? Yes, sir. So 6060 होगा ना? नहीं 50, ये 5050 है ना, इसका एड्रेस चाहिए ना बेटा, ये नोड का. हाँ, yes. ये नोड 6060 को पॉइंट कर रहा है और ये नल को पॉइंट कर रहा है. नहीं समझा बेटा, फिर से बताओ. समझा सर. ओके, तो यू नो व्हाट, एरे में क्या होता है बेटा, इंट a5. समझो मैंने एक एरे बनाया है 10 20 30 40 एंड 50. आपको ये 30 निकालना है तो आपको ओवरराइट करना पड़ेगा, इधर 40 लिखोगे इधर 50 लिखोगे, बट इधर कुछ भी नहीं रहेगा, बट ये मेमोरी तो रहेगा ना, मेमोरी विल एग्जिस्ट ना. आप समझ रहे, एरे का ऐसा तो नहीं है 4 एलिमेंट हो गए तो एरे का साइज भी कम हो जाएगा. एरे में ऐसा होता नहीं है बेटा, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा होता है. इसलिए हम कहते हैं इट कैन ग्रो एंड श्रिंक डायनेमिकली. नहीं समझा? समझा सर. ओके, इंसर्ट करना है. सपोज जैसे मैंने कहा यहाँ पे होगा 3030, ये वाला पीडीएफ में वापस अपलोड कर दूंगा क्योंकि मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ ना. आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस. तो यहाँ पे है 4040 5050 6060 एंड यहाँ पे इनिशियली नल था. आई वॉन्ट टू इंसर्ट समथिंग. सो व्हाट आई विल डू, ये नल को मैं बोलूंगा 7070. सो दिस विल पॉइंट टू दिस नोड और यहाँ पे मैं नल बोल दूंगा. कैन यू विजुअलाइज व्हाट जस्ट हैपेंड? Yes, sir. Yes, sir. So we have, see now earlier this linked list was having 5 node, now it is 6 node. Now suppose if the same I intended to do with array 10 20 30 40 50, I want to insert one more element 60 here. Can I do this? No, it cannot grow. So array will have its limitation and linked list will seize out these limitations. It will ease out these limitations. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Correct. So, and the next thing that we studied last session was this. Okay, so we started with pointer, which I will continue today. I will continue to a pointer. I will continue with dynamic memory allocation. Is it okay? Yes, sir. And you know what, Monday is our lab session ideally. Yes, Yes, sir. Yes. so if time permits we will discuss stack today.
यू नो व्हाट, अगर ये जो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अगर मैं बता देता हूँ ना बेटा, ट्रस्ट मी, throughout your life you will never be afraid of pointer and runtime memory. जैसे मैंने कहा ना बेटा, just try to visualize. Suppose I want to store 20,000 element. I want to sort some integer. Now if n is 20,000, next time n is 40,000. Can you, if is it feasible to create array 40,000 and then ask user to enter the number of element? It is wrong way of doing it. So in real life, whenever we are solving a problem ना, हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि रियल लाइफ में इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा. तो रियल लाइफ में ऐसा है बेटा कि जितना मेरा n का वैल्यू उतना मेरे एरे का साइज होना चाहिए. बराबर? यस सर. ठीक है. तो मैंने आपसे ये डिस्कस किया था व्हाट इज पॉइंटर. पॉइंटर मैंने कहा पॉइंटर व्हेनेवर वी हैव एनी मेमोरी, whenever we have any memory, how to access a memory, I can use its name to access a memory or I can use its address to access a memory. Name तो हमने देखा है, समझो ये int p है, p एक इंटीजर वेरिएबल है, तो इसका मतलब यहां पे हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. p नाम का जो मेमोरी है वहां पे हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. लेकिन जब मैं एस्ट्रिक p लिखता हूं तो इसका मतलब ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है. यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, यहाँ पे हम सिर्फ एड्रेस स्टोर कर सकते हैं. इज इट ओके? Yes, sir. So whenever we want to access a memory using its address, we will make use of pointer. So when we will use pointer when we don't know the name. फिर देखो, जैसे मैंने कहा, मैंने int asterisk p बताया, तो अब अगर आप p को अगर आप p को कोई इंटीजर वैल्यू देते हो जैसे कि 10, तो इनवैलिड होगा, क्योंकि p पे आप वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, आपको एड्रेस ही स्टोर करना पड़ेगा. यहां पे हमारा डिस्कशन एंड हुआ था लास्ट टाइम. कैन आई नाउ? तो ये मैंने रिवाइज किया, हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था. तो कैन आई स्टार्ट टुडे सेशन नाउ? Yes, sir. few more details about pointer. Everyone, any doubt regarding last lecture topic? Anyone? Oh, chalo, ठीक है. So let me discuss in detail about pointer, because without pointer I cannot teach you data structure. I mean, it will be a crime, and as a teacher I will never recommend this. इंजीनियरिंग में एब्स्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इंजीनियरिंग में फुल डिटेल होना चाहिए. कंसीडर प्लीज एवरीवन. मैं थोड़ा पॉइंटर डिस्कस करता हूं. ये मैंने हालांकि मैंने सीपी में डिस्कस किया था, तो सीपी के बच्चों का रिवीजन हो जाएगा, एंड जस्ट बेयर विथ मी. अगर मैंने लिखा इंट x, देखो क्या होगा. रैम में 64 बिट सिस्टम यानी 4 बाइट का मेमोरी मिलेगा. 64 बिट सिस्टम, मेमोरी का नाम x, सपोज इसका एड्रेस 2020, इतना होगा बेटा. अब मैंने लिखा इंट एस्ट्रिक p, तो 64 बिट सिस्टम में 8 बाइट का मेमोरी मिलेगा. भाई मेमोरी तो मिलेगा, तो इसका भी एड्रेस होगा, सपोज 3030. द नेम ऑफ द मेमोरी इज p. सपोज मैंने कहा फ्लोट y, तो यहाँ पे एक फ्लोट मेमोरी भी होगा 4 बाइट का. 64 बिट सिस्टम में 8 बाइट का. सपोज इसका एड्रेस है 4040, इसका नाम है y. You all agreed what just happened? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now listen. अब मैं कहता हूँ, now how to make a pointer. These are my two variables.
they can store values. One can store float value and one can store integer value. This is my pointer. It will only store address. Now can I say P stores address of Y? Is it okay? No. No, it is not okay. Why? Because of this. ये जो आप मेरे से एक आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, सर हर पॉइंटर का साइज सेम होता है, तो अगर हर पॉइंटर का साइज सेम होता है तो ये इंट फ्लोट लिख के फायदा क्या है? करेक्ट? एंड द एक्सप्लेनेशन गोज लाइक दिस. मैंने आपसे कहा, बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे कहा कि pointer will store address, correct, address of some memory. मैंने आपसे कहा pointer will store address of some memory, but किसका? ये जो int है, it specifies type, data type of memory whose address can be assigned to the pointer. मैंने लिखा int asterisk p, मतलब ये जो पॉइंटर p है ये सिर्फ एड्रेस स्टोर करेगा, लेकिन किसका? ये सिर्फ किसी इंटीजर का ही एड्रेस स्टोर करेगा. देखो, डेटा टाइप ऑफ मेमोरी whose address can be assigned to the pointer. डेटा टाइप ऑफ मेमोरी, ठीक है. सो मैंने int लिखा है, मींस p कैन स्टोर address of int type memory only. P can store address. तो अगर मैं फ्लोट का एड्रेस असाइन करने को जाता हूं तो नॉट अलाउड. सब लोग को ये बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. तो अब देखो, P equal to %x. %x means address of x is assigned to P. What is address of x? 2020. It is assigned to the P. So P is initialized with 2020. Once a pointer is initialized with the address, we will say pointer is pointing to the memory. Is it clear? Yes, sir. Now आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, सर इनिशियलाइज का फायदा क्या है? अब देखना, विदाउट पॉइंटर एंड विद पॉइंटर. प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो बेटा. मैंने कहा ना, मैं गेट को पढ़ाता हूं तो मुझे मालूम है कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए. सो यू विल अंडरस्टैंड. विदाउट पॉइंटर आई हैव टू असाइन वैल्यू. मुझे वैल्यू असाइन करना है, एक्स को वैल्यू देना है, मुझे मेमोरी का नाम पता है x. तो वैल्यू असाइन करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? scanf %d $x लिखता हूं कि नहीं बेटा मैं? Yes, Yes, sir. sir. Okay, now what is $x? 2020. विथ पॉइंटर अगर मुझे वैल्यू असाइन करना है तो देखो मैं क्या लिखता हूं, scanf %d. now $x is address of x. The address of x is assigned to P. P. So instead of $x, I can directly write they both means the same. 2020. Come on, tell me. Yes, sir. You know what? Technically, please try to understand the crux. Technically, आप $x लिखे या आप P लिखे, मेरे मशीन को फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों ही केस में मेरे मशीन को क्या मिलता है? 2020. मतलब यहां पे मैं कह रहा हूं, you get this integer value assigned to this address. यहां पे भी मैं कह रहा हूं you get this integer value and assigned to this address. I hope it is okay.
Yes, sir. सर नेक्स्ट, हाँ बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट? सर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो विदाउट पॉइंटर वाला केस है वो सिर्फ 1 स्टेप प्रोसेस है, और जो विद पॉइंटर वाला है उसमें 2 स्टेप होंगे, मतलब पहले आप पर पॉइंटर के आप पास जाएगा और फिर हाँ, आप ये जो बोल रहे हैं कि पहले पॉइंट, तो आपका जो क्वेश्चन है ना बेटा, बहुत ही सही क्वेश्चन है। सर ये एक बार में मालूम पड़ रहा है, वहां भी 2 बार में मालूम नहीं बेटा। मशीन के लिए यहाँ भी डायरेक्ट 2020 आ रहा है, यहाँ भी 20। इन दिस स्कैनएफ दोनों ही केस में सिंगल स्टेप प्रोसेस है। आपका जो एक स्टेप बढ़ रहा है वो ये बढ़ रहा है, असाइनमेंट। ये जो असाइनमेंट हो रहा है ना एड्रेस का, वो बढ़ रहा है। ओके ओके सर। सी अच्छा, आपका आपका एक क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और छुपा हुआ है। सर एक बात बताओ, जब मेरे को उस मेमोरी का नाम पता है x, तो मैं p क्यों यूज कर रहा हूं? व्हाई आई एम यूजिंग पॉइंटर, बराबर है ना बेटा? हाँ सर बराबर। हाँ, आई एग्रीड। मैंने कहा ये हम जब तैयारी करते हैं, ये मॉक ड्रिल चल रहा है, हम प्लेन हाईजैक की तैयारी करते हैं। जब हाईजैक होता है तब उसको इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब हम यहां आपको बता रहे हैं, सपोज एक मेमोरी है जिसका नाम आपको पता है, आओ सीखें कि उसको पॉइंटर से कैसे एक्सेस करते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा, अरे एक दिन एक ऐसा मेमोरी मिलेगा जिसका नाम हमें पता नहीं होगा, एंड आई विल टेक दैट एग्जांपल टुडे इटसेल्फ। टुडे यू विल अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड पॉइंटर. In this example, you can always argue with me why I should use pointer if I know the name x. Yes? यस सर। You know what? This is the reason we always want student to learn this pointer concept in C only. चलो आगे देखते हैं ना। अब मुझे वैल्यू रिट्राइव करनी है, वैल्यू रिट्राइव करनी है। प्रिंट यहां कैसे लिखेंगे बेटा? x, और मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, करेक्ट? यस सर। What this x means? It means value at memory identified by x. x नाम के मेमोरी का वैल्यू चाहिए, करेक्ट? और यहां कैसे मिलेगा? प्लीज लिसन, प्रिंट f, I will write asterisk p. Now asterisk p का मतलब it is asterisk of p. What is p? %x, Which is nothing but 2020. So asterisk 2020 मतलब content of memory 2020. तो मैंने आपको कहा value at memory identified by x, it simply means value at address 2020. They both means the same. यस सर। पहले ये बताओ, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? प्लीज नो। प्लीज, ओके। You know what? So let me make a conclusion. Let me make a conclusion. अगर कोई पॉइंटर P किसी मेमोरी X को पॉइंट करता है, if there is a pointer P, it points to some memory X, then जहां हम $x लिखते हैं वहां मैं क्या लिख सकता हूं? P. और जहां हम x लिखते हैं वहां हम क्या लिख सकते हैं? एस्ट्रिक। This ampersand is known as reference operator, क्योंकि आपको एड्रेस देता है। क्या होता है बेटा ये? एम्परसेंड को हम रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो सब लोग? रेफरेंस ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा P इक्वल टू एम्परसेंड x,
जब तक मुझे x का एड्रेस नहीं मिला तब तक पॉइंटर उसको पॉइंट नहीं कर सकता, बराबर। एकदम सब सुबह सुबह कॉफी वॉफी लेके बैठा करो। नाउ नेक्स्ट, ये एस्ट्रिक को क्या कहते हैं मालूम है बेटा? क्या कहते हैं? dereference operator. Dereference operator. And you know what it gives? It gives value at address. तो एम्परसेंड मुझे एड्रेस देता है, इसलिए मुझे रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। एस्ट्रिक मुझे वैल्यू एट दैट एड्रेस देता है, इसलिए मुझे डी रेफरेंस कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? No, No. sir. Okay, fine. So let me further conclusion. यहां पे देखो मैंने क्या लिखा बेटा, प्लीज। मैंने लिखा अगर पॉइंटर पी किसी मेमोरी x को पॉइंट करता है, लेट मी फर्दर जनरलाइज दिस। अगर कोई पॉइंटर p किसी मेमोरी को पॉइंट करता है, मैं मेमोरी का नाम x नहीं देता हूं, किसी मेमोरी को पॉइंट करता है, समझो मेरे पास प्लीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू मेक, एवरीवन प्लीज बी विथ मी। सपोज कोई पॉइंटर p किसी मेमोरी को पॉइंट करता है, देन p, जब मैं खाली p यूज करूंगा, इट गिव्स एड्रेस ऑफ मेमोरी टू विच पॉइंटर इज पॉइंटिंग। You will understand it very beautifully in the example, in the program that I will take now. P will give address of memory to which pointer is pointing. मतलब जब मैं सिर्फ P लिखता हूं तो P जिसको पॉइंट P जिसको, अरे क्या हो रही है, P जिसको पॉइंट करता है उसका एड्रेस मिलेगा। और मैं अगर एस्ट्रिक P लिखा तो क्या होता है बेटा? P जिसको पॉइंट करता है उसका वैल्यू, गिव्स वैल्यू एट एड्रेस टू विच पॉइंटर इज पॉइंटिंग। It means that, say, asterisk P क्या देगा? P जिसको पॉइंट करता है उसका वैल्यू। Now please listen. See, जब मैं P लिखता हूं, P किसको पॉइंट कर रहा है? X को। X का एड्रेस क्या है बोलो? 2020. I get 2020. When I write asterisk P, P किसको पॉइंट करता है? X को। X का वैल्यू क्या था? सपोज 10, तो व्हाट आई विल गेट? 10 हियर ना? यस। आई होप ये दो स्टेटमेंट आपको याद रहने चाहिए। अगर पॉइंटर किसी मेमोरी को पॉइंट करता है तो पॉइंटर का नाम अगर मैं लिखूंगा तो उस मेमोरी का एड्रेस मिलेगा, और एस्ट्रिक लिखूंगा तो उस मेमोरी का वैल्यू मिलेगा। इज इट क्लियर? Yes. नाउ कैन
Can I take one program to make you understand this? आपने कॉल बाय रेफरेंस पढ़ा था क्या बेटा सीपी में? हेलो? Yes. No. Yes, sir. Call by. कॉल बाय वैल्यू पढ़ा था बराबर? हाँ sir. Okay. Now let me take one example. Suppose मैंने लिखा int, please, मैंने लिखा int x equals to 10, y equals to 20, and I write printf before function call printf x equals to %d and y equals to %d. I will display value of x and y, and I'm going to make a call to a statement swap passing x and y to it. You can recall this program. Okay. चलो, ये प्रोग्राम समझ में आया? Yes, sir. I have to make one function. That function will be swap. चलो सब लोग मेरे को आंसर बताओ. बिफोर फंक्शन कॉल में x का क्या वैल्यू आएगा? 10. 10, y का 20. 20, सबको समझ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. आफ्टर फंक्शन कॉल में x का क्या वैल्यू आएगा? 10. y 10. का 20. 20. 10, करेक्ट? x का 10, y का 20 की x का 20 आएगा बेटा? X का x का 20, y का 20. अरे वैल्यू स्वैप होगा ही नहीं बेटा. Yes, sir. एक मिनट, सबको ये समझा है कि आई एम सपोज टू एक्सप्लेन दिस? प्लीज लेट मी नो. सर एक्सप्लेन कीजिए ना फिर. ओके, कोई बात नहीं बेटा, मैं तो एक्सप्लेन करने में खुशी हूँ. प्लीज, एक मैंने कहा ना, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि मेरे को पूरा बेसिक पढ़ाना है. आप बिल्कुल खाली बोर मत होइए, ठीक है? तो लेट मी टीच यू कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि आई कैन नॉट टेक यू फर्दर जब तक आपके पुराने बेसिक्स क्लियर नहीं है. Now, please everyone concentrate here. Okay, can I start the explanation? यस सर. Okay, please everyone, चलो ध्यान से. बेटा एक देखो, मेरे Yes, पास sir. दो फंक्शन है. एक फंक्शन यहाँ से चालू होके यहाँ खत्म हो रहा है, और दूसरा फंक्शन मेन यहाँ से चालू होके यहाँ खत्म हो रहा है. ये मेरा रैम है. ऑलवेज मेमोरी पे काम करने का. अगर आप मेमोरी पे काम नहीं कर रहे हो तो देन यू विल कमिट एरर. ये मेरा रैम है. बताइए सबसे पहला कौन सा फंक्शन कॉल होगा? मेन. तो देयर विल बी सम मेमोरी असाइन्ड टू मेन इन रैम. whenever any function is called in RAM, there is a memory assigned to the function. मेन के अंदर मैंने दो इंटीजर बनाए हैं. अभी यहाँ मैं 2-2 बाइट ही लिखता हूँ, क्योंकि अपने को 2 बाइट में इजी होता है एक्सप्लेन करना. इज इट ओके? आई विल यूज इंटीजर 2 बाइट ओनली. Yes, Yes. sir. तो sir. यहाँ पे मेरे को दो मेमोरी असाइन कर दिया है. एक का नाम x, एक का नाम y. इसका वैल्यू 10, इसका वैल्यू 20. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब आउटपुट देखो. आउटपुट में मुझे बोला है बिफोर फंक्शन कॉल.
तो क्या बता, ये जो आउटपुट, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये मेन फंक्शन के अंदर है। तो x का वैल्यू मेन में जो है, y का वैल्यू मेन में जो है, तो मेरा आउटपुट आएगा x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20। नाउ आई हैव कॉल्ड अ फंक्शन स्वैप x कॉमा y। मैंने x और y लिखा है। जब भी मैं x लिखता हूं, इसका मतलब क्या है, वैल्यू एट x एंड y। तो व्हाट इज वैल्यू एट x? 10। 10, What is value at y? 20. 20. तो I have called a function swap और मैंने उसको 10 और 20 ऐसा वैल्यू पास किया। यहां से मेरा जो कंट्रोल है वो स्वैप फंक्शन में जाएगा बेटा। जैसे ही स्वैप फंक्शन कॉल होगा, इन रैम there will be a memory allotted to swap function. Are you there with me, everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे स्वैप के अंदर दो मैंने इंटीजर बनाए हैं। इसका नाम x है, इसका नाम y है बेटा। लेकिन ये अलग मेमोरी पे है ना बेटा, तो इसका एड्रेस भी अलग होगा ना। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये भी xy है, ये भी xy है। बेटा वो दोनों अलग अलग घर में है कि नहीं? हाँ Yes, सर। sir. मेरे घर में मेरा नाम सचिन, तेंदुलकर के घर में भी उसका नाम सचिन, हम दोनों का नाम सचिन है, लेकिन हम दोनों अलग अलग लोग हैं, अलग अलग घर में रहते हैं। जस्ट राइट व्हाट है। हर माँ बाप अपने बच्चे का नाम सचिन रख सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक घर में जो सचिन है वो दूसरे घर के सचिन को सेम है, नहीं, सिर्फ नाम सेम है। सो व्हाट इज देयर, वी हैव टू फंक्शन, मेन एंड स्वैप। ये एक्स वाई सेम नाम मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस एक्स वाई इज डिफरेंट फ्रॉम दिस एक्स वाई। यू नो व्हाट, इस पैरामीटर को हम क्या करते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। ये आपने पढ़ा होगा, एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं बेटा। The parameter passed in function call are known as actual parameter. Agreed or not? Yes, sir. Yes, sir. और फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर होता है उसे क्या कहते हैं, फॉर्मल। यू मे कॉल इट एज आर्ग्यूमेंट, यू मे कॉल इट एज पैरामीटर, you may call formal argument actual argument, or you may say formal parameter actual parameter. You know what is happening, the actual parameter are only values. Can you understand? They are only values that gets copied into formal parameter. The value gets copied, that's it. Agreed? Yes, sir. Yes. See, it is like this. ये है फ्लैट नंबर 101, ये है फ्लैट नंबर 102। फ्लैट नंबर 101 में पेरेंट्स को दो बच्चे हैं, एक का नाम x, एक का नाम y। पेरेंट ने x को 10 रुपए दिए, y को 20 रुपए। फ्लैट नंबर 102, इट इज ऑल टुगेदर अनदर फ्लैट। उसमें भी कोइंसिडेंटली पेरेंट्स को दो बच्चे हैं, एक का नाम x, एक का नाम y। फ्लैट नंबर 101 में जब माँ बाप ने अपने बच्चों को 10 और 20 रुपए दिए, तो फ्लैट नंबर 102 के बच्चों ने जिद किया हमें भी चाहिए। तो फ्लैट नंबर 102 के पेरेंट ने फ्लैट नंबर 101 के पेरेंट से पूछा, तुमने कितने पैसे दिए? तो x को 10 रुपए दिए, y को 20। ये देखते हुए 102 ने भी अपने बच्चों को 10 और 20 दिए। दे ओनली कॉपीड द वैल्यू। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. Now what happened in swap function, there is another variable t here, and using t, अब फ्लैट नंबर 102 में क्या किया है, बच्चों ने अपने पैसे स्वैप कर लिए। t को x का वैल्यू, t gets 10, x के पास y का वैल्यू, x gets 20, y के पास t का वैल्यू, y gets 10। फ्लैट नंबर 102 के बच्चों ने अपने पैसे स्वैप कर लिए कि नहीं? Yes, हाँ sir. सर। अच्छा,
यहाँ पे कंट्रोल खत्म हो गया प्रोग्राम का। यस सर। यहां से कंट्रोल वापस कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। यस सर। यस सर। अच्छा, और एक बात, whenever a function is called, please remember this is your fundamental, बहुत इंपॉर्टेंट है। whenever a function is called, the memory is allotted to the function in RAM। फंक्शन को हम जब बुलाते हैं, या मैं आपसे कहूं फंक्शन को हम जितनी बार बुलाते हैं उतनी बार उसको मेमोरी मिलता है। जब जब मेरे फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, जब मेरे फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, फंक्शन को दी गई मेमोरी वापस ले ली जाती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कंट्रोल, व्हेन द कंट्रोल इज रिटर्न बैक इन मेन, द मेमोरी allotted to the swap function is gone, it is gone, you got it? Yes sir. यस Yes sir. Now I am in main, so after function call, now फ्लैट नंबर 102 के बच्चों ने अपने पैसे अदला बदली कर लिए, बट जब मैं मेन में आके फ्लैट नंबर 101 में x के पास कितने, y के पास कितने, वो तो सेम ही है। नहीं समझो? समझा सर, समझा समझा। Just समझा सर अभी। इसको क्या बोलते बेटा, इसको बोलते कॉल बाय वैल्यू। यहाँ क्या होता है, यहाँ हिंदी में लिखूं चलेगा? हाँ सर। यस, वही अच्छे यहाँ समझ में। यहाँ एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू, एक्चुअल पैरामीटर का सिर्फ वैल्यू। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। एक मिनट, ये टीम्स है, टीम्स में चैट है ना, कैन यू सी द टीम्स? कोई बच्चा अपने को कुछ मैसेज भेजता है तो कहाँ आता है बेटा ये? हाँ हाँ हाँ, कैन यू सी दिस अभिषेक शर्मा? यस सर। यस सर। ये बच्चा, जस्ट आई वांट यू टू सी दिस। ये बच्चे ने कब भेजा है मुझे? कभी भेजा, दिख रहा है क्या? 25 को, 25/8। कैन यू सी दिस? यस सर। क्या लिखा है देखो? टुडे ही गॉट प्लेस्ड इन वेयर? You know what? TCS Digital gives you more than 8 lakh package. क्या बात है। मजे। नहीं, आप समझे नहीं, ये मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ ये। और सी, मैंने कहा ना, वी आर नॉट बिकमिंग एन इंजीनियर टू राइट टू सॉल्व सम एग्जाम क्वेश्चन यार। पेपर तो भी पपलू हो गए हैं भाई। हम बड़े होके ये थोड़ी सोचे थे कि एक दिन हम मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में 80 में से 70 नंबर लाएंगे और माँ बाप खुश हो जाएंगे। क्या तुम्हारा उद्देश्य इंजीनियर बनना थोड़ी है? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अरे ऐसा जॉब चाहिए भाई। आप भावनाएं समझ रही मेरे में क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर। So this is the importance of the subject. So you know what I want you to, मैंने इसलिए आपसे आते ही क्या प्रॉमिस लिया, I will not hesitate to teach you difficult thing, because you know what, आंखें बंद कर लेने से दुनिया में अंधेरा नहीं होता है ना बेटा। मैं डिफिकल्ट नहीं पढ़ूंगा तो जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो स्टूडेंट मेरे साथ इस जॉब के लिए लड़ रहे हैं, और तुमको मालूम है टीसीएस का फंडा क्या डिजिटल का? दे डू नॉट गो टू एनी कॉलेज। TCS has stopped going to college, वो ऑनलाइन होता है। तो गांव में बच्चा जो बैठा है ना बेटा, वो भी ये एग्जाम देके जॉब ले सकता है। सो योर कंपटीशन हैज डबल्ड, सो योर एफर्ट हैज टू बी डबल्ड ना यार। समझा? तुमको लग रहा होगा सर ऐसे गोली दे रहे, बिल्कुल नहीं बेटा। तो एकदम ना देसी तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ने का, फिर अपने को कोई भी कुछ भी पूछे। यहां एक्चुअल पैरामीटर के लिए सिर्फ वैल्यू कॉपी होता है। क्या कॉपी होता है बेटा? एक्चुअल पैरामीटर का सिर्फ वैल्यू कॉपी होता है। अगर हम
ये मेरे फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। अगर हम फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजेस करते हैं, आई विल गो वेरी स्लो, वी विल गिव लॉट ऑफ टाइम टू एवरी कॉन्सेप्ट। अगर हम फॉर्मल पैरामीटर में चेंजेस करते हैं तो क्या वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होंगे? नो सर। ये मैंने कहा ना, अगर खुद को नहीं समझे तो ऐसा बोलने का, फ्लैट 101 फ्लैट 102 दोनों में दो बच्चे, नाम x और y, मां ने x को 10 y को 20 रुपए दिए। ये देख के 102 ने भी 10 और 20 दिए, बस इतना देखा उन्होंने, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड बाय वैल्यू, ओनली वैल्यू इज कॉपीड। अगर फॉर्मल में चेंजेस करते हैं तो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। I hope everyone is thorough with this example. Yes, sir. पक्का बेटा? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना? See, first thing I want to encourage you to ask lot of doubt. I like the class who asks lot of doubt. तुम है ना, मेरा लाइफ है ना, एकदम मुसीबत कर दो, इतना पढ़ के आओ, इतना डाउट पूछो कि टीचर डर जाना चाहिए। मेरे को वो क्लास पसंद है जहां जाने से पहले टीचर को डर लगना चाहिए, ताकि टीचर उतना पढ़ के आए ना यार, टीचर को काम पे लगाओ तो बराबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए टीचर सोचे अरे मैं पढ़ा नहीं पढ़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुमने फीस भरा ना, वसूल करने का, टीचर से निचोड़ के वसूल करने का, बराबर है। ठीक है, फाइन। now let me teach you why we need pointer. Now please just see here what I am doing. Instead of x, what I am writing? Address of x and y. अच्छा, पहले बात देखो, जब मैं x और y पास कर रहा था तो मैं इंटीजर वैल्यू दे रहा था, यस और नो? Yes, sir. इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए अपने को इंटीजर मेमोरी चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. Now instead of integer I am passing Pointer. address. I am passing Address. address. Can address be stored here? No, sir. Address are stored in Pointers. समझ गया? इतना पॉइंट समझा? Yes, sir. Yes. अब देखो मैं क्या करूं। Have a look. Please, now let me teach you call by reference. And then after this dynamic memory allocation. चलेगा? Yes, sir. Yes. Call by reference. Now have a look here. चलो, रैम बना, हमेशा मेमोरी बनाने का बेटा, कभी मिस्टेक नहीं होगा लाइफ में। ये मेरा रैम है। सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल हुआ? मेन। ये रहा मेन को मेमोरी। मेन को मैंने x और y दिया, x 2020, y 3030, 10 20। Agreed? Yes, Yes, sir. sir. आउट, तो मेरा आउटपुट देखो कैसा आएगा। आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट है बिफोर फंक्शन कॉल। अच्छा, ये जो मेरे कमांड है ये मेन में है, तो मेन का x मेन का y, तो x का वैल्यू आया 10, y का वैल्यू आया 20। नाउ प्लीज लिसन, नाउ आई एम कॉलिंग अ स्वैप फंक्शन, तो स्वैप फंक्शन को मेमोरी मिल गया।
बट यहां पे मैं एड्रेस पास कर रहा हूं। तो ये जो मेरे एक्चुअल अब मेरे एक्चुअल आर्गुमेंट वैल्यूज नहीं है, मेरे एक्चुअल आर्गुमेंट क्या है? एड्रेस। आर माय एक्चुअल आर्गुमेंट वैल्यूज और दे आर एड्रेस? एड्रेस। Address. ओके, नाउ you know what happened, यहां से मैं x का एड्रेस, y का एड्रेस, तो व्हाट इज 2020 एंड 3030 पास कर रहा हूं। Yes, sir. Yes, sir. सो यहाँ पे पॉइंटर है, 2 पॉइंटर है। मैं नाम कुछ भी दे सकता था, आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने x और y दिया। कुछ भी, मेरा घर, मेरे बच्चों का नाम मैं डिसाइड करूंगा। ये फ्लैट 101, उन्होंने x और y दिया। 102 भी बोलेगा, मैं भी x और y दूंगा, तुमको क्या करना है? तो you know what, here suppose it is 4040505, here what we got is not the value. Remember, in earlier example they got 10 and 20, here what they got is yes or no. Yes, sir. Sir. Now try to look here. You know what it is? T equal to asterisk x. What is x? 2020. Yes. So it is something like this. T equal to asterisk of 2020. Now what is 2020 is here. So what is asterisk of 2020, dear? Value at 2020. And that is 10. 10. And So T gets 10 here. Yes or no? Yes, sir. okay. Yes, sir. Now listen, it is what? X. You know ये क्या कह रहा है? 3030 का वैल्यू 2020 का वैल्यू बनाओ। Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. What is 3030 का वैल्यू? 20. 20. उसको किसका वैल्यू बना दो? 20. तो यहाँ पे क्या आ गया? 20. See, it is two different thing. मैंने क्या बोला, मेरे हम लोग जो लेटर भेजते हैं, हम लोग जो कुरियर भेजते हैं, हम यूजिंग एड्रेस भेजते हैं। Yes, sir. इट इज सिंपली, तो ये जो स्वैप के अंदर 20203030 है, ये कुरियर है और ये एक्चुअल लोकेशन है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, व्हाट इज दिस? एस्ट्रिक y यानी एस्ट्रिक 3030 इज t। व्हाट इज t? 10। सो 10 किसको असाइन करो? 3030 को। सो यहाँ क्या आ जाएगा? yes or no? Yes, sir. Yes. Now I want to ask you a question. Now please, this is very serious, please everyone just concentrate. स्वैप फंक्शन को, ये जो दो मेमोरी है, 2020 का नाम x है, 3030 का नाम y है, ये दोनों मेमोरी मेन में बनाए हैं हमने। yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों मेमोरी का नाम क्या स्वैप फंक्शन को पता था? नहीं। No, sir. स्वैप फंक्शन के पास ये दोनों मेमोरी का नाम नहीं पता था। दोनों मेमोरी का क्या पता था? Address. 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 एड्रेस। यस, दैट इज द पॉइंट। स्वैप फंक्शन को, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। स्वैप फंक्शन इज अ फंक्शन जिसके पास मेन फंक्शन के दो मेमोरी का एड्रेस था, एंड यूजिंग दिस एड्रेस swap function was able to make the changes in the memory of main. देखो मेन में वैल्यू चेंज हो गया, देखो Yes, sir. देखो जरा, लेट मी एग्जीक्यूट दिस तो तुमको समझ में। आउटपुट देखना, ये तुमको समझ रहा है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. देखो बिफोर फंक्शन का क्या वैल्यू था? 10 and 20. आफ्टर फंक्शन कॉल क्या वैल्यू आया?
20 and 10. Yes, that is the point. तो I was able to, यानी स्वैप. अच्छा, और एक बात सुनो, जब कंट्रोल यहां से वापस आया ना, यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो चुका था, बट चेंजेस तो हो ही गए थे ना बेटा. यू नो व्हाट वी जस्ट लर्न इज, मैंने ये सीखा कि अगर किसी दूसरे फंक्शन का एड्रेस मेरे पास होगा तो मेरे पास उस मेमोरी का नाम नहीं भी हुआ तो भी मैं उसके अंदर चेंजेस कर सकता हूं. ऑल आई नीड इज एड्रेस. नहीं समझा, नहीं समझा. समझा सर, समझा. समझा सर. थोड़ा बहुत समझा बेटा. Yes सर sir. सब कुछ समझा. एक ओके, डाउट वेरी. है सर. बोलना बेटा बिंदास. करते हैं एम्परसेंट एक्स मतलब एड्रेस होता है किसी भी मतलब Perfect. एक्स वेरिएबल का. Perfect. और उधर आपने ऊपर जो फंक्शन है वॉइड स्वैप में उसमें एस्ट्रिक एक्स है. एस्ट्रिक, आई एम सॉरी सर, टंग हाँ स्लिप हो बोलना, गया. बिंदास बोल, एस्ट्रिक ही बोल At- रहा है तो तू ये वो कहना ये है चाह. ना, लेकिन क्या देख, वैल्यू है ना, लेकिन वो सुन दोनों सुन, सेम कैसे हो सकते हैं? बराबर है. तू ये कह रहा है नहीं. देख, जब एस्ट्रिक, ये एस्ट्रिक एक्स और ये एस्ट्रिक एक्स में फर्क है. जब तू इंट एस्ट्रिक एक्स लिखता है तो तू ये कहता है, ध्यान दो, क्योंकि ये जब व्हेन यू राइट डेटा टाइप ना बेटा, देन यू आर डिक्लेयरिंग इट. मैं नीचे लिखता हूं नोट. When you write int asterisk x, it means we are declaring that x is a pointer variable. तो सिर्फ यहां डिक्लेयर करता है x एक पॉइंटर है, लेकिन जब तू एक बार एड्रेस असाइन कर दिया उसके बाद एस्ट्रिक एक्स लिखेगा तो इसका मतलब, जब तू एस्ट्रिक एक्स विदाउट डेटा टाइप लिखता है इसका मतलब वैल्यू एट एड्रेस पॉइंटेड बाय एक्स. ये दोनों में फर्क समझ गया? हाँ सर, यही डाउट. हाँ, देख बेटा यहां डेटा टाइप लिखा है ना. हाँ सर. जब तुम डेटा टाइप लिखते हो तो डिक्लेरेशन होता है. क्लियर? यस सर. आई होप एवरीवन इज क्लियर. कैन आई मूव अहेड? यस सर. I will request you, after the lecture you again go through it. Any doubt, next session. See, हर लेक्चर में हम, अभी ये डेटा स्ट्रक्चर इनिशियली हमें 2-3 लेक्चर तक ऐसा करना पड़ेगा कि हर लेक्चर में 15 मिनट आपको कोई डाउट रहेगा तो मैं वो सॉल्व करूंगा, फिर ही आगे बढ़ूंगा. ठीक है ना बेटा? नाउ कैन आई गो अहेड विथ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन? यस सर. यस सर. डायनामिक मेमोरी. Now what is dynamic memory allocation and why do we need it? जैसे मैंने कहा, कंसीडर, अगर आप कहते हो int a 100 and then you ask and then you have int n, ठीक है, and then you say printf enter value of n, और यूजर कहता है scanf %d %n. अब यहाँ पे दो बातें होती हैं. If n is very small than 100, 100 से अगर बहुत छोटा है बेटा, it will result into wastage of memory. And if n is greater than 100, then no sufficient memory. Yes or no? यस सर. Yes. So to overcome this problem, what we need is, see, आपको अगर कुछ लिखना है तो आप मुझे बोलो, I will stop. Otherwise मैं तो ये शेयर कर ही रहा हूं ना. Overcome this problem. First, read value of n. Second, create
memory of size n। ये तो बहुत अच्छी बात है, पहले n का वैल्यू ले लो, फिर n के साइज का मेमोरी अलॉट करो। बट n का वैल्यू तो बेटा हम रन टाइम लेते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जाने के बाद n का वैल्यू रीड करते हैं कि नहीं? यस सर। यहाँ yes, but value of n is read at runtime. So runtime means after execution starts. So the memory must be assigned at runtime. Yes ना बेटा, memory must be assigned at runtime. How? कैसे करेंगे? How? तो हमारे पास दो तरीके हैं। We have runtime। सी रन टाइम का मतलब क्या होता है? नॉर्मली बेटा जब आप int a 100 लिखते हो ना, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जाने से पहले डिसाइड हो जाता है क्या मेमोरी देना है, तो आपका स्टैटिक एलोकेशन होता है। रन टाइम मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर में हमारे पास दो ऑपरेटर है, एक का नाम है मैलॉक और एक का नाम है कैलॉक। ये दोनों ही कहाँ बिलोंग करते हैं? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। यानी अगर मुझे ये दोनों फंक्शन यूज करना है तो आई हैव टू इंक्लूड विच हेडर फाइल? stdlib.h। agreed? यस सर। yes, तो sir. first function we will study is malloc। now malloc का पहले सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स देखिए, void asterisk malloc size in bytes। ये malloc का जनरल फॉर्म है। malloc कहता है मेमोरी एलोकेशन, कितना मेमोरी एलोकेट करना है वो आप बाइट्स में बताइए। और मेमोरी एलोकेशन के बाद वो वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। एक्चुअली क्या रिटर्न करना चाहिए बेटा? एड्रेस ऑफ द मेमोरी। क्या रिटर्न करना चाहिए? तो मैलॉक क्या करता है? मैलॉक एलोकेट्स मेमोरी ऑफ स्पेसिफाइड साइज, आपने जो भी साइज बोला वो, एंड देन रिटर्न्स इट्स एड्रेस। क्योंकि बेटा मेमोरी, अच्छा जो मेमोरी रन टाइम बनती है उसके पास कोई नाम नहीं होता है। ये बात समझ में आ रहा है आपको? मेमोरी एलोकेटेड, सी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो मेमोरी हम रन टाइम एलोकेट करते हैं उसको कोई नाम नहीं होता है, सिर्फ उसका क्या होता है? एड्रेस। और अगर मुझे उस मेमोरी को एक्सेस करना है तो मेरे पास उसका नाम नहीं है, सिर्फ एड्रेस है, तो बताइए मैं क्या यूज करूंगा? Pointer. आहा, तुमको थोड़ा समझ में आ रहा है मतलब। मैंने कहा ना पॉइंटर का फंडामेंटल यूज कब है? जब मेरे पास मेमोरी का क्या नहीं है बेटा? नाम। क्लियर? यस yes, sir. चलो ठीक है। नाउ लेट मी सी कैसा होगा। देखो एग्जांपल। सो फर्स्ट स्टेप आई वांट टू क्रिएट एरे ऑफ इंटीजर। तो क्रिएट अ पॉइंटर ऑफ डिजायर्ड टाइप। मेरे को इंटीजर का एरे बनाना था तो मैंने int एस्ट्रिक पे ले लिया। ठीक है। सी यहां पे आप बोलोगे एड्रेस ऑफ मेमोरी वॉइड, क्यों बेटा? क्योंकि मुझे ये क्या बोलता है, ये सिर्फ एड्रेस रिटर्न करता है बट क्या टाइप का वो नहीं बताता है। अपने को याद है पॉइंटर में टाइप भी बताना पड़ता है, इंट, फ्लोट,
Yes? sir. हाँ, Yes. वो हम देखेंगे. We will see it how it is done. So सबसे पहला काम create a pointer. Second, read value of n. n का वैल्यू रीड कर लो. तो मैंने कहा int n print f enter value of n. Scan f %d ampersand n. तो मुझे n का वैल्यू मिल गया ना बेटा. Yes, sir. अब देखो क्या बोलेंगे. Assign memory of size n and return its address to pointer. तो कैसे होगा देखो जरा. कैसे देखो, मेरे को n के साइज का मेमोरी चाहिए. तो देखो मैं क्या लिखूंगा. मैलॉक मेमोरी एलोकेट करो. मैलॉक को क्या देंगे. साइज क्या होता है n. बट n इंटीजर. हर इंटीजर का साइज कैसे मुझे पता चलेगा. I have to use an operator size of. तो अगर इंटीजर का साइज 4 बाइट होगा तो इट इज 4 into n. You know, size of int will give me size of integer in that machine. I hope you got my point. Yes, sir. Yes, sir. When I am using size of, I need not to be worried about what will be the size of integer. मेरे को ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जो भी उस मशीन पे इंटीजर का साइज होगा उतना. तो n suppose size is n is suppose 5. Size is 4. 5 4s are 20. Size is 2. 5 2s are 10. Agreed? Yes, अच्छा, sir. ये Yes. एड्रेस किसको मिलना चाहिए. p को. लेकिन बेटा मैलॉक है ना, void टाइप रिटर्न करता है. void पॉइंटर रिटर्न करता है. मेरे पॉइंटर का टाइप क्या है. Int. Integer. तो मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा. तो the void pointer is typecasted. टाइप कास्टिंग पढ़ा होगा आपने. समझा. तो अगर मेरा फ्लोट पॉइंटर होता तो यहां मैं फ्लोट एस्ट्रिक लिखता. समझ में आ रहा है. अगर Yes. यस कैरेक्टर पॉइंटर होता तो मैं कैर एस्ट्रिक लिखता. समझ में आ रहा है. Agreed? Can I write one program for it? यस सर. Please everyone concentrate. This is beautiful concept. Yes, sir. Alt F. Okay. Hash include stdio dot h. lib करना पड़ेगा ना include. Let me write int asterisk p comma n. एलिमेंट्स चाहिए. n एलिमेंट चाहिए. अब देखना p equals to int asterisk malloc n into size of int. अच्छा, आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा. size of int into n. Either way, because ये तो प्रोडक्ट है ना बेटा. a into b is same as b into a. If it is not matrix, otherwise it is same for number. Yes or no? यस सर. Yes. अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये तो एरे बन गया. अब क्या होगा. मुझे एरे में एलिमेंट लेने हैं. प्रिंट एफ एंटर
element. अच्छा, now what is the name of your array now? P only. So for, मालूम है ना, I equals to 0, I less than n. आप ऐसे लिखते थे ना बेटा, I प्लस प्लस स्कैन एफ, कुछ अलग दिमाग नहीं चलाने का। आप एम्परसेंड ए ऑफ आई लिखते थे ना? Yes, sir. जस्ट राइट एम्परसेंड पी ऑफ आई। अच्छा, अगर तुम्हें एरे ए बहुत पसंद है तो पॉइंटर का नाम ए रख दो, खाली खत्म। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? समझा बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Elements in array are for I equal to 0, I less than n, I plus plus print f % d slash t, मालूम है ना slash t, horizontal tab. Hello. Yes, sir. Yes. Uh, Let me show you this program. Everything else is same. अगर आप इतना छोड़ देना, बाकी देखो ये देख के तो ऐसे लगेगा नॉर्मल एरे का ही प्रोग्राम है। एम्परसेंड ए ऑफ आई, ए ऑफ आई, तो जो आपके पॉइंटर का नाम होगा वही एरे का नाम होगा। नहीं समझा? समझा सर। Yes, sir. लेट मी एग्जीक्यूट इट। क्या हो गया? अच्छा, आई डिक्लेयर ही नहीं किया, सॉरी। कितने एलिमेंट चाहिए? 10। एंटर द एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7। यस। तो अगर आप देखें बेटा, ऐसा बहुत डिफिकल्ट, हमने एरे के कितने प्रोग्राम लिखे थे याद है? लास्ट सेम में हम इंट ए 25 बोलते थे, बाद में यूजर को बोलते थे एंटर द वैल्यू ऑफ n, और फिर हम प्रोग्राम लिखते थे। टेक्निकली वो सारे सही तरीके नहीं थे। यस और नो? The difference in that program and this program is, there my array size has nothing to do with n. It might be equal to n, it might be less than n, or possibly greater than. But then here my array size is exactly equal to n. नहीं समझा? समझा सर, समझा। Very पेज good. भी नहीं होगा समझ गया। तो Yes. Let me paste this program here. So that program is Like, also, इसमें जितना यूज होगा उतना ही मतलब यूजर डालेगा ना। हाँ बेटा, जितना तुम एन डालोगे उतना ही मिलेगा। अच्छा, लेकिन और एक बार तुमने एन डाल दिया तो उतना फिक्स रहेगा। अब वो क्योंकि एरे है, स्टैटिक है, तुमने एक बार एन 20 डाला तो 20 से ज्यादा साइज नहीं होगा। यू गॉट दिस? Yes, sir. नाउ, तो एक फंक्शन मैलॉक है। मैंने आपको दो तरीके बताए, मैलॉक एंड कैलॉक। नाउ मैलॉक का क्या बात है? इट इज नॉट, हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा। अरे ही चल। हेलो, यू नॉट ऑडिबल बेटा। हेलो बेटा, यू, हाँ, हेलो, कोई बच्ची डाउट पूछ रही है क्या? अदिति थी सर, अदिति का कॉल। अदिति, बेटा यू नॉट ऑडिबल। यू मे राइट योर डाउट, यू मे राइट। हर्ष के, अगर एरे ही चाहिए तो पॉइंटर क्यों बनाया? अरे बच्चा, तुम समझे नहीं।
मेरे को एरे चाहिए था, लेकिन मुझे पहले से पता नहीं था ना बेटा एरे का साइज कितना होगा अदिति। वो एरे का साइज तो जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तब मुझे पता चल रहा है ना अदिति। आई वांटेड एरे बेटा, but I was not sure about the size of the array. The size of the array will be made available at runtime, so I cannot assign the name before, so I have to use pointer. I made it very clear. अगर मेमोरी रन टाइम एलोकेट हो रहा है तो उसका नाम पहले से नहीं पता होगा। श्योर अदिति, यू गॉट इट? Yes, sir. हाँ, नाउ वेट, ये जो मैलॉक है ना, इट इज नॉट प्रेफरेबली यूज फॉर array. क्यों सर? नॉट प्रेफरेबली मैंने बोला, अभी हमने रन किया, बराबर है? बिकॉज Yes. क्या होता है ना, नॉर्मली मैलॉक है ना स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस एलोकेशन में मैलॉक ज्यादा इफेक्टिव नहीं है ऐसा बोला जाता है, बट हम बिंदास रन करें अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेफरेबली यूज टू क्रिएट स्ट्रक्चर नोड। तो मैंने आपको हालांकि रन करके दिखाया, देखो, एंड इट वर्कड फाइन। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं हम मैलॉक को स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं, हालांकि आप यूज करो, रॉन्ग नहीं है, इट इज नॉट रॉन्ग, मैंने प्रेफरेबली बोला है। कैलॉग जो होता है, कैलॉग मींस कंटिन्यूअस एलोकेशन, इट इज प्रेफरेबली यूज फॉर एरे। हालांकि मैंने कहा ना, कोई फर्क नहीं है, ये इट्स लाइक एक ही काम करने के दो फंक्शन हैं। इसका सिंटैक्स भी से नहीं, देखो, void asterisk calloc, यहां देखो क्या होता है, साइज ऑफ ईच एलिमेंट कॉमा नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों में फर्क है। और void asterisk calloc number of element comma size of each element। यहां पे देखिए ऐसा नहीं था बेटा, यहां पे एक सिंगल एलिमेंट लेता था वो, साइज इन बाइट। यस Yes, sir. तो यहां बाकी सब सेम रहेगा। तो यहां देखो क्या होगा, इंट एस्ट्रिक पी नोट स्कैन एफ इंट एन scan f %d %n, you got value of n, how do I write? p equal to int asterisk, क्यों int asterisk? क्योंकि void रिटर्न करता है, same as in malloc। calloc you may write n comma दो अलग अलग आर्ग्यूमेंट है, size of int, or you may write p equal to int asterisk calloc size of int comma n। दो में से, यहां पे देखो दो आर्ग्यूमेंट अलग अलग ले रहे, ऊपर हमने प्रोडक्ट दे दिया था विच वाज अ सिंगल वैल्यू। यू गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. let me rewrite it, see, यहां पे देखो मैं मैलॉक की जगह क्या लिख रहा हूं, n comma दो आर्ग्यूमेंट, everything else is same, can you see this? Yes, sir. सी कितने एलिमेंट चाहिए, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वर्क फाइन। Yes, sir. Yes, sir. Perfect. ना अब हमें इसको
कॉपी करता हूं और यहाँ नोट्स में पेस्ट करता हूं। सो आपका जो नोट्स बनेगा उसमें प्रोग्राम वोग्राम सब होगा, एक कंप्लीट नोटबुक बन जाएगा। यहाँ पे हमने कैलॉग यूज, कैलॉग मीन्स कंटीन्यूअस एलोकेशन। तो एक्चुअली मैंने कहा प्रिफरेबली, बट यू मे यूज एनी वन, यू मे यूज। तो आपको अगर सिंगल एलिमेंट चाहिए, सिंगल एलिमेंट, मैं एक कंक्लूजन देता हूं, नोट नीड रन टाइम मेमोरी फॉर सिंगल नोड और एलिमेंट, एक एलिमेंट, जैसे एक इंटीजर के लिए मेमोरी चाहिए, एक इंटीजर, एक नोड के लिए मेमोरी चाहिए, तो क्या यूज करेंगे बेटा? malloc need runtime memory for array of element, क्या यूज करोगे बेटा? कैलॉग। बट मैंने कहा ये प्रेफरेबली है, यू में मैंने दोनों ही रन करके दिखाया एंड बोथ वर्क्स फाइन, दिस इज ओनली सजेशन। बात यहां तक समझा क्या आप लोगों को? यस सर। Yes. Now can I move ahead with our chapter number 1? Yes, sir. Now, हाँ, but I will still need 1 more minutes, क्योंकि we talked about linear data type ना, let me talk about non-linear data structure। लीनियर में हमने स्टैक देखा, क्यू देखा, लिंक लिस्ट देखा, बराबर। नॉन लीनियर में हियर द एलिमेंट्स are not arranged in linear fashion। तो नॉन लीनियर का एग्जांपल क्या है? 2 हैं, एक ट्री आपके सिलेबस में, एक ट्री और एक क्या है बेटा? ग्राफ ना। ट्री और ग्राफ में मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा, सो दैट एटलीस्ट तुमको पता तो चले क्या है ये। तो ट्री पहले हम बात करने जा रहे हैं। ट्री कैसा दिखता है? ट्री इज समथिंग लाइक दिस, 1 2 3। तो देर इज सम पैर, दिस इज रूट, ये नोड पेरेंट है, ये चाइल्ड नोड्स है, चाइल्ड किसी और का पेरेंट होगा। कैन यू अंडरस्टैंड? यस सर। जैसे Yes, ए sir. यस सर। बी सी डी ई एफ जी, डी और ई का पेरेंट बी है, बट बी का पेरेंट ए है। रूट सबका पप्पा होता है, रूट सबका पेरेंट होता है। ये लीनियर नहीं है बेटा। देखो, ए से हम बी में भी जा सकते हैं, सी में भी जा सकते हैं, सी से हम एफ में भी जा सकते हैं, जी में भी जा सकते हैं। ये नॉन लीनियर मूवमेंट है कि नहीं, बताइए जरा। यस सर। Yes, sir. तो ट्री में क्या होता है? एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन हायरार्की, है ना? There is parent child relationship, और ये अलग अलग लेवल पर है। इसको हम लेवल 0 बोलते हैं, रूट लेवल 0, ये लेवल 1, ये लेवल 2, एंड इट ग्रोज डाउनवर्ड। यस और नो? Yes, sir. Elements are at different level, they are not in same plane, they are not in same. Can you understand the plane? Yes, sir. Yes. They are not in same.
यस, ये जो लास्ट होते हैं इनको लीफ नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीफ नोड। लीफ नोड। जो टॉप पे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रूट। रूट हमेशा एक होता है। एटलीस्ट हम बाइनरी ट्री की बात करें, दिस इज एग्जांपल ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी मतलब 2, एवरी नोड कैन हैव मैक्सिमम 2 चाइल्ड। yes or no? Yes, sir. One thing that you must understand, they are in different level, they are not in same plane. So there is some hierarchy, parent child relationship. Let me talk about graph. Let me talk about graph. Graph is something like this. There is no parent, there is no parent, no child. They are at the same level, same plane. इनफैक्ट नोड्स को हम वर्टेक्स बोलते हैं यहाँ पे, बराबर। ग्राफ में वर्टेक्स और एजेस होते हैं ना बेटा। There is no hierarchical relation. हायरार्की नहीं है ना बेटा। यहाँ पे फिर रिलेशनशिप किसका होता है बोलो? नेबरहुड रिलेशन। क्या रिलेशन होता है? नेबरहुड रिलेशन। जैसे ए का नेबर कौन है बताओ? बी डी। बी का नेबर कौन कौन है? ए डी ई सी। ए डी ई सी। बी जिसके साथ डायरेक्ट एच कनेक्टेड है वो उसके नेबर्स। बी जिसके साथ डायरेक्ट एच कनेक्टेड है वो उसके नेबर। तो मैं बी से ए में जा सकता हूं, बी से डी में जा सकता हूं, बी से ई में जा सकता हूं, बी से सी में जा सकता हूं। सो देयर इज नेबरहुड रिलेशन और एडजेसेंसी रिलेशन। एडजेसेंट नोड्स ना? यस सर। सो दे ये जो अभी हम बहुत डिटेल में, ट्री आपका एक बहुत कंप्लीट चैप्टर है, ग्राफ आपका एक कंप्लीट चैप्टर है, बट आई होप नाउ यू कैन रियलाइज व्हाट इज ट्री एंड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। एनी डाउट? नो सर। कोई नो भी सर। दिक्कत, कोई परेशानी? सर ग्राफ का कोई रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए ना। एक नंबर बेटा, तूने दिल जीत लिया मेरा। ये देयर इज समथिंग कॉल्ड Dijkstra's algorithms for shortest path. मैं तो गेट में पढ़ाता हूँ तो एग्जाम्पल का टेंशन ही भूल जा। इन नेटवर्क समझो। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आशुराज सर। हाँ, ए फॉर आशुराज। आशुराज अपने कंप्यूटर पे बैठा है। आशुराज किसी को मेल भेजना, मालूम है? योर नेटवर्क इज कनेक्टेड थ्रू राउटर्स एंड सो मेनी इंटरमीडिएट नोड्स। आशुराज ये मैसेज किसी ए बी सी डी ई जी एच किसी एफ को भेजना चाहता है। एफ, आशुराज कोई मैसेज किसी एफ को भेजना चाहता है। और बेटा ये जो एजेस है ना, ये कॉस्ट है। कॉस्ट कैन बी ट्रैफिक। जस्ट, अरे मैं तेरे को बेस्ट करता हूँ, जीमेल जब तू गूगल मैप ओपन करता है, तेरे को नो पाथ दिखाता है ना अलग अलग। यस सर। दैट इज ग्राफ। दैट इज सिंपली ग्राफ। तेरे को मालूम है फेसबुक पे तू मेरा फ्रेंड, तो तेरे सारे फ्रेंड मेरे को दिखते हैं नोटिफिकेशन में, पीपल यू मे नो। हाँ सर, हाँ लिंक्डइन में भी आता है। एग्जैक्टली, दैट इज ग्राफ। दे आर कनेक्टेड ना, नेबरहुड। याद है, अगर तेरा नेबर तो तेरे सारे नेबर मुझे बोलेंगे तू इनके नेबर बन जा, तभी तो एक पूरा चेन बनता है। ये भी नहीं, जब तू सर्च करता है ना गूगल पे सचिन तेंदुलकर, तो जितने भी पेजेस रहेंगे जिसमें सचिन तेंदुलकर रहेगा, दे विल बी लिंक थ्रू दैट कीवर्ड।
हाँ हाँ, बराबर बराबर हाँ, होता है सर। तो समझो ये सब वेट है। वेट कैन बी कॉस्ट, इट कैन बी एनीथिंग। 2 4 6 7, ये तुमको नेक्स्ट सेमेस्टर में है, ये सेमेस्टर 4। आई मीन ब्यूटीफुल। मैं बोल रहा हूँ कॉम्स एक मतलब एकदम परम आनंदीय स्ट्रीम है। तो तुमने क्यों कॉम्स लिया मेरे को पता नहीं, तुमको लोगों ने बोला होगा मार्केट में कॉम्स चल रहा है इसलिए लो। बट मतलब कॉम्स अगर सच में दिल से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे ना बेटा, आईआईटी देखो ना, आईआईटी भी जो पास कर जाते हैं वो भी कॉम्स ही लेते हैं ना, टॉप 100 काफी हद तक। आईआईटी यस टॉपर सर। देखो, आईआईटी टॉपर देखो उसको कॉम्स नौकरी छोड़ दो रे। तुम इतने बचपन से पढ़ाई कर रहे हो, छोटी सी नौकरी के लिए थोड़ी जीवन में बड़ा बनना है कुछ। अब जैसे ये पूरा है, ए से मैसेज जा रहा है एफ तक पहुंचना है, बहुत सारे रास्ते हैं कि नहीं। मैं डायरेक्ट ए बी सी डी एफ भी कर सकता हूँ, ए ई जी एच एफ भी कर सकता हूँ, बहुत सारे रास्ते कि नहीं। उसमें से मुझे एक शॉर्टेस्ट रास्ता निकालना है। दैट इज वन प्रॉब्लम ऑफ ग्राफ, डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम। समझा क्या? हाँ सर, अभी वो समझा आपने मैप वाला एग्जांपल कैसे दिया, मतलब ट्रैफिक देख के फिर बता रहे हो। हाँ, तो वो फटाफट एक तो और शॉर्टेस्ट रूट दिखाता है मुझे। तो यहां से अगर मैं कांदिवली रहता हूँ, यहां से कांदिवली जाने के बहुत रास्ते, बहुत सारे रास्ते, वो सब सेम लेवल पे है ना बेटा। हाँ सर। एग्जैक्टली तो वो शॉर्टेस्ट रूट कैलकुलेट करता है, और ये प्रॉब्लम को जो गूगल सॉल्व करता है यूजिंग ग्राफ ओनली। इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डिक्स्ट्रास ना, to give me shortest path from my source to my destination. A is my source, destination को algorithm में sync कहा जाता है। तो from source to sync, I hope I made some sense. यस सर। चलो, now allow me to start with, हाँ finally तुम हेलो सोच रहे होगे। हाँ बोल बेटा, बोल बोल बोल। सर, जो मतलब अभी हम लोग को टीम्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो लाइक वहां पे हम हाँ, लोग देखते हैं तो ऐसे ट्री का सिंबल होता है। तो सर किसका सच में सिंबल वहां पे बेटा? ट्री वाला यूज होता है कि कुछ और यूज होता है? ऑर्गेनाइजर चार्ट जो होता है ना हाँ टीम्स में, तो हाँ, सर उसमें क्या यूज होता है? लाइक ये ट्री यूज होता होगा ना? ये रहा टीम्स। किसमें तू बोल रहा है बता, ऑर्गेनाइजर किधर है? सर आप मीटिंग में जाएंगे ना? मीटिंग्स, हाँ, ये मीटिंग में। ऑर्गेनाइजेशन वाले में। हाँ, हाँ एक पर मिनट। अपनी मीटिंग। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस यूजर। ऐसा क्यों बोला मुझे पता नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है वो बता दे तो मैं बता दूंगा बेटा। ये रहा टीम्स। अब जैसे मैं तेरे को बताता हूं, टीम्स के अंदर नोटबुक, असाइनमेंट, ग्रेड, इनसाइड, ये सब है ना। तो ये एक ट्री है जिसमें 4 नोड है। समझ रहे हैं? मैं जितने टीम बनाऊंगा उतना ट्री बन रहा है, और ट्री के अंदर ये सारे आएंगे उसके। आर यू गेटिंग इट? हेलो। यस सर। जैसे एक ट्री, यस यस एक टीम्स एक ट्री है। तो वो क्या सोचता है यार, इस टीम में टीचर जो भी इंसर्ट करेगा वो इसी ट्री के नोड होंगे। अब जैसे असाइनमेंट एक नोड है, असाइनमेंट में अगर मैं 10 असाइनमेंट डालूंगा, सो ऑल दोस 10 असाइनमेंट विल बी अंडर असाइनमेंट नोड, समथिंग लाइक दिस। सी, यस सर। जैसे मैंने एक टीम बनाया, टीम टीम में क्या है, इनसाइट्स, असाइनमेंट्स, क्या है, नोटबुक, ग्रेड्स। ये इस टीम के सारे होंगे। अब मैंने नोटबुक में समझो 3 नोटबुक डाला, तो नोटबुक 1, नोटबुक 2। असाइनमेंट में 3 असाइनमेंट डाला, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3। कैन यू सी? क्योंकि टीम का नाम क्या है, CM PN SEM 3DS, CMPN SEM 3DS संजीव द्विवेदी। तो हर टीम के लिए वो एक ट्री बना देंगे।
तो इस ट्री के रिलेटेड सारे नोड वो अपने आप बाइफरकेट करेगा ताकि सर्च इजी हो जाए। तो जब मुझे नोटबुक ढूंढना है तो मैं असाइनमेंट में क्यों जाके ढूंढूं, मैं नोटबुक में ही ढूंढूं। Yes, sir. You got it, but it is the only difference is it is not a binary tree. There is something called as n-array tree. N-array tree. तो यहाँ n is 4. Suppose 4 means every node can have maximum 4 child. नहीं समझा? समझा सर। Is it clear? बेटा, I'm making sense. Yes, sir. चलो. Yes sir. Okay. So now let me start with stack. So now can I actually start with stack? तो I think जो भी आपके पुराने basics थे, I was able to touch those basics, and whenever and wherever required, I will revisit it. You need not worry about anything. Is it clear? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. Now, okay. Wait. There is something more I would like to talk. आपने स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से किया है, मुझे विद पॉइंटर किया है क्या? स्ट्रक्चर विद पॉइंटर किया है? हाँ बेटा? No, sir. No sir. Then I cannot teach you stack. I have to discuss it. Is it okay? Yes sir. स्टैक का तो पूरा सेम पढ़ा हुआ है, स्टैक क्यों ही पढ़ना है? सपोज मैंने कहा टाइप डेफ, दिस इज हाउ यू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर। टाइप डेफ स्ट्रक्ट int रोल नंबर फ्लोट परसेंटेज स्टूडेंट, बराबर ना बेटा? ऐसे स्ट्रक्चर बनाते थे ना आप? हेलो सर वो जो टाइप टैफ लिखा है वो नहीं लिखते थे। टाइप डेफ नहीं लिखते थे स्ट्रक्चर में आप? अगर आप टाइप डेफ नहीं लिखोगे तो बार बार स्ट्रक्ट लिखना पड़ता है। हाँ वो लिखते थे आई थिंक। अरे वो क्यों करने का? मतलब सर आप ऐसे स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ स्ट्रक के लिखते थे। मतलब आप ऐसे लिखते हो, अभी मैं समझ गया, बट मैंने टाइप डेफ यूज किया था आई गेस। यस स्टूडेंट? हाँ मैंने sir. टाइप डेफ ही सी, आप लोग ने मतलब ऐसे पढ़ा स्ट्रक्ट स्टूडेंट। हाँ यस सर। और इसके बाद लेकिन जब तुम्हें वेरिएबल बनाता हो तो तुम ऐसे बनाते होगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट s1 s2 ऐसा बनाते थे तुम, बार बार स्ट्रक्ट लिखते थे। डॉट सर। क्यों? नहीं, पहले बार बार स्ट्रक्ट ऐसे लिखते होगे तुम। You know, actually it is very inefficient way. You know why? When we are creating a structure, we are creating a user defined data type. Yes or no? Yes sir. Yes sir. See, we call it as variable. S1 and S2 are variable of type student. It means that they will have all the features of type student. Student has 2 members. So क्या होगा? In your RAM, please try to understand. In your RAM, you will have, समझो ये 2 बाइट या 4 बाइट, 6 बाइट का मेमोरी हो गया। Yes? 2 Yes sir. इंटीजर 4 फ्लोट। इसका नाम S1 रोल नंबर एंड परसेंटेज, S2 रोल नंबर एंड परसेंटेज। फिर तुमको अगर वैल्यू लेना है तो तुम क्या लिखते हैं? S1 डॉट रोल नंबर इज 10, S2 डॉट रोल नंबर इज 20, or you may write scanf %d ampersand S1 dot roll scanf %d ampersand S1 dot percentage. Yes or no? Just confirm this. Yes sir. Yes sir. Okay. अब अगर प्रिंट करना होगा तो तुम कैसे लिखते थे?
printf %d s1 dot roll printf %d s2 dot roll। ओके चलो ठीक है। बट बेटा यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस इज कि अगर आप इधर टाइप डेफ नहीं लिखते ना, इसका मतलब क्या है सुनो, जब तक आप टाइप डेफ नहीं लिखते तब तक आप मशीन को ये बताते हो ही नहीं हो कि स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर टाइप है, इसलिए जब जब आप स्टूडेंट लिखोगे तब तब आपको स्ट्रक्ट लिखना ही पड़ेगा। So it is an inefficient way of writing this. So ideally, whenever we are creating a structure, the efficient way is write like this. Type def is a keyword. It means I am defining a new data type. It means I am defining a new data type, which is a structure. It contains roll number, it contains percentage, and the name of the structure is student. Now what? You just have to write student S1 and S2. Lest आप मेरे से बोलोगे कि अरे सर इससे क्या फर्क पड़ता है स्ट्रक लिखने का बार बार? नहीं बेटा, इट इज इनएफिशिएंट because every time my compiler, whenever you write student, my compiler has to recheck कि भाई ये student है क्या। compiler has to recheck every time here कि भाई ये student एक structure है। So you are making my compiler busy. Here it is not. When the moment you write type def, it simply means I am defining a new data type. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Now please wait. मैंने structure pointer बोला है ना? So just I will need 5 minutes. तो मैंने लिखा student S1. Only one variable. So there is S1 here. S1 will have roll number, S1 will have percentage, size is 6 byte. मुझे वैल्यू असाइन देना है तो S1 डॉट रोल नंबर इज 10, S1 डॉट परसेंटेज इज 70। मुझे प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगा printf %d S1 डॉट रोल नंबर printf %d S1 डॉट परसेंटेज। क्लियर? ये पॉइंट सबको क्लियर है? Yes, sir. So now Yes, sir. we will use type def henceforth. Is it okay? So that बेटा मैं सिर्फ स्टूडेंट यूज करूँ ना यार बार बार। समझा? Yes, sir. Yes, sir. Now अब देखो, अब मैं विद पॉइंटर बताता हूँ। दिस इज केस 1 without pointer. Now have a look. Case 2। अच्छा आप लोग थक जाओ ना तो मुझे बता देना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं 12:30-1 तक पढ़ाते रहूंगा। बच्चे जब तक जिंदा है तब तक पढ़ाऊंगा। कभी भी तुमको लगता नहीं सर आज हम थक गए हैं, जस्ट लेट मी नो। तुमको ब्रेक चाहिए तो भी बताओ सर अभी थोड़ा ब्रेक ले लो, 10 मिनट में कंटिन्यू करो। एवरीथिंग एज पर योर, क्योंकि मुझे मालूम है ऑनलाइन इट इज इजियर सेड देन डन। पीपल बोलते हैं अरे बच्चों को क्या है घर पे बैठे। नहीं, आई नो इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि हर जगह एनवायरनमेंट इतने नहीं है कि आपको अकेला पूरा कमरा मिल गया, एकदम बढ़िया वाईफाई मिल गया और काम कर रहे हो। There are struggle at some point at some places. So please feel free to convey your problems. And I am always adjustable to your needs. Is it okay, beta? Yes, sir. Yes, sir. Now let us see with pointer. With pointer देखते हैं। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, student S1। जब मैं ऐसा लिखता हूँ जैसे कि मैंने कहा ये रहा S1,
इसके पास आया रोल नंबर, इसके पास आया परसेंटेज. Now I want, let me create a pointer, let the name of the pointer be S. I want this pointer to point to S1. Yes or no? See, there is some X. I want a pointer P point to X. What is the type of X? int, What is type? Int. So what should be the type of pointer? int, Int. Now I want a pointer to point to S1. What is type of S1? Struct. Nahi re. Type student, of S1 is student. अच्छा, okay. आपने स्टूडेंट को एक टाइप डिफाइन कर दिया है. स्टूडेंट इज अ टाइप, आपने ये डिफाइन कर दिया है, तो अब आपको बार बार स्ट्रक्ट नहीं लिखना बेटा, यही तो खूबसूरती है इसकी. What is type of S1? Come on, tell me. Student. So what should be the type of pointer? student, Student. So remember, type, क्योंकि हम अपने सिलेबस में थ्रू आउट फ्रॉम स्टैक टू द लास्ट चैप्टर वी विल यूज स्ट्रक्चर ओनली. तो हम स्ट्रक्चर टाइप डेफ से ही बनाएंगे, और जब हम पॉइंटर यूज करेंगे तो रिमेंबर दिस इज वेरिएबल ऑफ टाइप स्टूडेंट, and you know what, this is pointer of type student. अगर ये pointer of type student है, so it will hold address of variable. क्या ये इंटीजर का एड्रेस स्टोर करेगा? नहीं. क्या ये फ्लोट का एड्रेस स्टोर करेगा? नहीं. ये सिर्फ उसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा जिसका टाइप स्टूडेंट होगा. नहीं समझा? सर पर स्टूडेंट्स के तो बहुत सारे टाइप्स होंगे ना, बिकॉज वी आर डिफाइनिंग दैट. एग्जैक्ट, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं. वो क्यों बेटा, एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए ना. मैंने एक मेल लिखा, मैंने टू डाला, मैंने सब्जेक्ट डाला, मैंने मटेरियल डाला, मैंने सेंड पे क्लिक किया, गया. व्हाई शुड आई बी बॉदर्ड कि वो कैसे गया? बिकॉज ये ना हमने खुद का एक टाइप बनाया, उसके अंदर इंटीजर होने दो, फ्लोट होने दो, स्ट्रिंग होने दो. सो अगर मैं इंटीजर पॉइंटर बोलूंगा इट विल ओनली पॉइंट टू दिस रोल नंबर. फ्लोट बोलूंगा तो दिस परसेंटेज. I want a pointer which should point to this complete memory. You got it? Yes, sir. So remember one thing. S1 is a variable of type student. If I want a pointer, it should be variable of type student only. यहाँ तक समझा? Because what is the type of this memory? The type of the memory is not integer. The type of the memory is not float. The type of a memory is student. जैसे integer एक data type है, float एक data type है, वैसे ही मैंने student एक data type define कर दिया है. तुम समझे क्या? Yes, sir. See, Yes, sir. this is beauty of using type def. जैसे int एक data type है, float एक data type है. These are primitive data types. These are built-in data types. In the very same manner, I have defined a data type called as student. नहीं समझा, नहीं समझा. समझा सर. तो अगर इंटीजर का पॉइंटर हो सकता है, फ्लोट का पॉइंटर हो सकता है, तो स्टूडेंट का भी पॉइंटर हो सकता है. यस? Yes, sir. Yes, sir. नाउ तो ये रहा S. अच्छा बताओ, एक मिनट, 64 बिट सिस्टम में S का साइज कितना होगा? सर इंटीजर प्लस इसका होगा ना, फ्लोट का. फिर नहीं समझा. पॉइंटर का साइज फिक्स हाँ, नहीं समझा क्या? समझा सर. बेटा फिर से कंफ्यूज नहीं करो, एक मिनट. स्ट्रक्चर के अंदर क्या उससे फर्क ही नहीं पड़ता है.
मेरे स्ट्रक्चर का मैंने एक नाम दे दिया है, क्या नाम है? स्टूडेंट। तो अब वो इंटीजर नहीं। अच्छा एक बात बताओ, चलो लेट मी। मैं एक चेयर पे बैठा हूँ कॉलेज में। कॉलेज अगर तुम आओगे, एक चेयर है मस्त एकदम बढ़िया, उस चेयर में वुड भी है, कुशन भी है, लेदर भी है। तो मैं उसको बोलूं वुड टूट गया, कुशन टूट गया, लेदर फट गया, मैं क्या बोलता हूं? मेरा चेयर खराब हो गया। तो चेयर एक डेटा टाइप बन गया कि नहीं? Yes, sir. Chair consists of lot many things, but those things are now immaterial. They are part of a chair. So chair is a data type. कॉलेज बंद है लॉकडाउन में, तो कॉलेज बंद है मतलब लैब बंद है, लेक्चर बंद है, सब बंद है, बट दे ऑल फॉर्म अ टाइप कॉलेज। तो हम बोलते हैं कॉलेज बंद है। आप ये नहीं बोलते आज मेरे कॉलेज का लैब बंद है, ऐसा नहीं होता ना बेटा। सो स्ट्रक्चर के अंदर इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, लॉन्ग है, डबल है, कुछ भी होने दो, but when it is a part of structure, it is one data type which is structure. अरे तुमने जावा में क्लास बनाया होगा, क्लास स्टूडेंट। हाँ सर। Yes, sir. So that's a beautiful concept of encapsulation, wrapping of data and function together in a class. Yes. So class is a data type, इसलिए तुम उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो? a1 equal to new a, right? Yes, sir. तो जैसे जावा में न्यू इज अ रन टाइम मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर, इन सी वी हैव कैलॉक एंड मैलॉक। मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. पहले ये देख लो, स्टूडेंट S1, पॉइंटर का टाइप भी स्टूडेंट होना चाहिए, क्लियर? Yes, sir. देन S इक्वल टू एम्परसेंड S1। सपोज ये 2020 है, ये 2020 इधर आएगा। Yes, sir. नाउ मुझे रोल नंबर को वैल्यू देना है। अगर मैं S यूज करके दूंगा तो मैं कैसे लिखता हूं? S1 डॉट रोल, S1 डॉट परसेंटेज, बराबर है। विथ पॉइंटर में क्या बोलूंगा? S एरो ऑपरेटर। समझा क्या? Yes, sir. प्रिंट करने की ये आपको टेक्निक, ये आपको मालूम होना चाहिए। प्रिंट करने के लिए, अच्छा मैंने इधर कुछ गड़बड़ किया क्या? इधर F लिखना चाहिए ना यार, परसेंटेज। F F F F परसेंटेज F, फ्लोट था ना, मैंने फ्लोट डिक्लेयर किया। S एरो रोल नंबर, परसेंट F S एरो परसेंटेज। तो कहने का क्या मतलब है? दो चीजें। When I am accessing structure member with structure variable, I will use dot operator. नहीं समझा? Got it. When I am roll number and percentage are structure member. बोर कर रहा हूं क्या? नींद आ रही है? No, sir. सर No, वापस sir. बताइए सर। हाँ मैं फिर से बताता हूं। नोट ध्यान दो, when accessing structure member, स्ट्रक्चर का मेंबर जैसे रोल नंबर और परसेंटेज विथ स्ट्रक्चर का वेरिएबल, यूज डॉट। इसको डॉट ऑपरेटर कहते हैं या पीरियड ऑपरेटर भी कहते हैं। तो मैंने एग्जांपल क्या दिया बेटा आपको? स्टूडेंट S1, S1 डॉट रोल नंबर 10, S1 डॉट परसेंटेज 70। नेक्स्ट, when accessing structure member with
Structure pointer. नहीं समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सर समझ रहे हैं. When accessing structure member with structure pointer, use arrow operator. तो देखो जरा यहाँ हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट S1 स्टूडेंट एस्ट्रिक S equal to ampersand S1 and then S arrow roll number is 10, S arrow percentage is 70. इतना समझा क्या? बस इतनी रिक्वायरमेंट है आज की अपनी. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, No, sir. So now you know how to so basically arrow is what? Arrow is an operator that allow me to access the structure member using structure pointer. अभी समझा सर. Allow me to access structure member using structure pointer. Yes? Yes sir. Yes, sir. Chalo. I think finally I can start with stack. Chalo. Stack is our chapter number 1, but trust me, आप लोग अगर बोर भी होंगे तो those topics were very necessary. And now सर वो स्ट्रक्चर का प्रोग्राम दिखा सकते हैं क्या कोई, मतलब वो यूज करके स्ट्रक्चर structure का? पॉइंटर? हाँ, स्ट्रक्चर अरे पॉइंटर यूज करके. बेटा मैं स्टैक का पहला प्रोग्राम ही उससे करूंगा, इसलिए तो पढ़ाया हो मैंने. समझा? यस. सी मैंने कहा we will use it in every program we will do. एक मिनट, ओके चलो काम करता रुको. Alt F O, where is data structure? Data structure, PhD work. See, ये आपका पहला प्रोग्राम होगा, stack using array. See what I'm using? Arrow ना? Yes sir. So you know what? The very first program that I will teach you will be using this. So don't worry. इसलिए तो मैंने पढ़ा दिया ना अभी. I know I'm supposed to use it ना बेटा. Okay? Got it. Okay. So now we are going to say stack. So let me revise this. Stack is a data structure that operates in LIFO, last in, first out fashion. कम से कम 20 मार्क का टॉपिक है ये. कितने मार्क का? 20 marks. यस. तो अगर स्टैक आता है तो भी अपन पास हो गए. जैसे मैंने कहा, स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड using array and using linked list. But using linked list we will study in next chapter. What we will study here? Stack using Array. array. तो हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? So in this particular chapter we will study stack using array. So now let us see how we will implement a stack using array.
अरे थक गए नहीं हो ना भाई, थक गए हो? क्या बोल रहे थे? हेलो, 2.5 घंटे हो गए अपने लेक्चर के। यू आर ओके और यू वी वांट टू स्टॉप? सर एक 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। सर 10 मिनट का ब्रेक। 10? अच्छा 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर टॉपिक चालू करें? हाँ तो सर बाद में हाँ, yes, sir. तो देखो 11:30 हो रहा है, 11:40 को मिले। ओके सर। ओके ओके सर। Yes, ओके, sir. चलो चलो, एक नंबर, चलो थैंक यू सर। क्या बेटा, चलो 11:40। हाँ
Yes. Are we back? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Okay. Yes, sir. जैसे मैंने कहा बेटा कि stack using array. Now, when I say stack using array, the first thing that means we are going to implement our stack using array. The first thing that we will implement, right, is ADT. There is something called as ADT, abstract data type. Stack using array का ADT, abstract data type. Now, what is ADT? What in ADT, what we will specify is the stack as a structure and the operations on stack. The operations on stack. ADT matlab kya beta? It's like a pseudocode. Can you understand what is a pseudocode? It's like writing false code. So ADT is not subjected to any language as such. It is not subjected to any programming language as such. तो ADT जब आपके एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता ही है. This exam question, stack ADT using array. तो आप लिखेंगे कैसे? देखिए जरा, हम कहेंगे let s1 to max be stack of integer. हम बोलेंगे let s represents a stack and stack will have max number of element. 1 to max means it will have max number of element. जैसे मैंने कहा था, the insertion and deletion will be from top end only. So मैं बोलूंगा let top is a variable that represents top of the stack. जैसे मैंने कहा let max represents size of the stack and let there is something called ELE. ऐसे हम कुछ लिखते हैं. It is ELE represents an element. Is it okay? यहाँ तक समझा ये इतना nomenclature? सर वो फर्स्ट लाइन फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना. लेट एस 1 मैक्स, वो नहीं समझा. वो मैं बोल रहा हूँ let s represents any stack with the size max. 1 to max with, जैसे बेटा अगर मैं using array बोल रहा हूँ तो suppose max 5 है. Suppose max is 5. So 1 2 3 4 5. So let this is an array and I'm going to make the array behave like stack. You know, what do you mean by stack using array? Means make array behave like stack. Is it clear? So it Yes. says because I'm going to use array, so array will have some max number of element. Because ये जो max है ना बेटा, ये हम array के साथ associate कर सकते हैं. Linked list के साथ कोई max होता नहीं है ना बेटा. Linked list के साथ कोई max नहीं होता. समझ रहे हैं मेरी बात? Linked list में कोई size upper limit नहीं होता है. Is it clear? यस सर समझा. Yes, सर sir. सिर्फ वो लिंक लिस्ट मालूम नहीं सर. हाँ, लिंक लिस्ट अभी बताया था ना यार मैं सुबह. अरे यार क्या आप लेट ज्वाइन किए बेटा? नहीं सर. तो मैंने लिंक लिस्ट आज पूरा एक स्टार्टिंग में ये देखो, ये सब जो मैंने बताया था. क्या कर रहे हो अच्छा बाबा? अच्छा वो सर. ओके 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 गॉट इट सर. लिंक लिस्ट में देखो ना, ये देखो मैंने बोला Yes. जितना हाँ, चाहिए हाँ, अपन हाँ, ऐड कर yes, सकते हैं. वो इसमें कोई नाम अपर भूल गया बाउंड, मैं. हाँ इसमें अपर बाउंड नहीं होता बेटा. यस ठीक है. सर. अच्छा बेटा, एक और बात नोटिस करो कि ये में एडीटी है. इट इज नॉट रिलेटेड विथ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो एरे में जो आप 0 1 2 3 लिखते हो ना, मैं 1 2 3 4 5 लिखूंगा. इज इट क्लियर? बिकॉज 1 to max बोला है. द फर्स्ट पोजिशन इन एरे विल बी 1 and the last position will be max. Is it okay? This is only our representation.
Is it okay? Yes, got it, sir. Now, let top be initialized to 0 initially. क्योंकि मेरा स्टैक इनिशियली एम्प्टी है तो टॉप इनिशियली 0 होगा। तो देखो ये रहा मेरा टॉप, यहां पे कहीं यहां पे 1 के पहले मैं 0 इमेजिन कर रहा हूं। इज इट क्लियर? तो ये मेरा इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैक। इनिशियली क्या हो रहा है, एक मेरे पास एरे है जिसमें मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट है। आई एम गोइंग टू मेक दिस एरे बिहेव लाइक स्टैक and the insertion and deletion will be done only from top end, and let me initialize top to 0. You got this? Yes, sir. Yes. Now the first function that I am going to write ADT is push function. So कैसे लिखेंगे? function push S means in stack S, push one element represented by ELE and push function will not return anything. ADT में ना return type last में लिखते बेटा। You got it? आपको ये समझ में आया? तो push is a function. It will push one element ELE into the stack and the function will not return anything. नहीं समझा? सर समझा? Okay. डाल देंगे। यस, अब देखो, अब समझो यूजर ने कहा मुझे, अब ये रहा मेरा, ध्यान से। लेट मी रिप्रेजेंट स्टैक लाइक दिस। वन टू थ्री फोर फाइव, टॉप इधर है 0 पर और ये मेरा स्टैक है एस। देखो पहला एलिमेंट अगर मैं 10 एंटर करता हूं तो 10 कौन से पोजीशन पे जाएगा? 1 पोजीशन। यानी अच्छा मैंने क्या बोला, इंसर्शन और डिलीशन टॉप पे होगा। इंसर्शन और डिलीशन कहां होगा बोलो? टॉप पे। टॉप अभी क्या है? 0, बट इंसर्शन कहां होना है? 1 पे। इंसर्शन कहां होना है? इंसर्शन कहां होना है? 1 पे। तो सबसे पहले मैं टॉप को क्या करूंगा? इंक्रीमेंट। तो सबसे फर्स्ट अगर मेरा एलिमेंट 10 है तो मैंने टॉप को प्लस प्लस किया जिससे मेरा टॉप हो गया 1, और अब मैं क्या बोलूंगा? बोलो, स्टैक में टॉप पोजीशन पे एलिमेंट को रख दो। इसका मतलब स्टैक में 1 पोजीशन पे 10 को रख दो। नहीं समझा? तो यहाँ पे आ गया। अब देखो अब क्या हो गया, सी मेरा टॉप 0 से हो गया 1 और यहाँ पे आ गया 10 आफ्टर पुश, फर्स्ट पुश। दिस इज द सिचुएशन। सो टॉप को प्लस प्लस करने का, स्टैक में टॉप पोजीशन पर एलिमेंट को रखने का। फिर से सेकेंड केस, सेकेंड वापस एक बार पुश ऑपरेशन हुआ। सो टॉप प्लस प्लस, अब टॉप कितना हो गया बोलो? समझो मेरा एलिमेंट है 20, तो टॉप क्या हो गया? अच्छा समझो यहाँ मेरा मैक्स कितना है? 5। स्टार्ट। तो अब मेरा टॉप प्लस प्लस हो गया, टॉप कितना हो गया? 2। समझ में आ रहा है? यस सर। स्टैक में 2 पे एलिमेंट 20 को रखने का। तो अब मेरा टॉप हो गया 2, यहाँ पे आया 20, मैंने और एक पुश किया, थर्ड। अब मेरा एलिमेंट कौन है? 30, टॉप प्लस प्लस हो गया, टॉप कितना हो गया? 3, स्टैक में 3 पर 30 रख दो। देखो टॉप प्लस प्लस होके 3 हो गया, 30 रख दो। अब मेरा एलिमेंट है सपोज 40, टॉप प्लस प्लस हो गया, टॉप कितना हो गया? 4,
स्टैक में 4 पर 40 रख दो, टॉप हो। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब सपोज एलिमेंट है 50, टॉप प्लस प्लस, टॉप कितना हो गया 5, स्टैक में 5 पे 50 रख दो, टॉप हो गया 5, 50 रख दो। अब अगर मैं वापस एलिमेंट को बोला 60, टॉप प्लस प्लस किया, टॉप प्लस प्लस क्या हो गया 6, बट वो मेरे मैक्स के बाहर चला गया कि नहीं? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. तो आप बताइए, क्या मैं ब्लाइंडली इंसर्ट करूंगा? नहीं, मैं सबसे पहले जब भी इंसर्शन होगा मैं चेक करूंगा टॉप का वैल्यू अगर मैक्स है, टॉप का वैल्यू अगर मैक्स है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा कि स्टैक फुल हो गया है, स्टैक ओवरफ्लो, और मैं यहीं से फंक्शन मेरा रिटर्न हो जाएगा। अगर फुल नहीं है तो ही नीचे आएगा। नहीं समझा? जस्ट विजुअलाइज। समझा सर। समझा सर। Every time whenever I am pushing an element, it will first check whether top is max or not. If top is max, it will print a statement stack overflow and will return. If not, first it will increment a top, and then in the incremented top position, it will place the element. Please everyone just have a look at this and just ask yourself, are you satisfied with whatever we have written? Sir, what if we don't write the condition if top is equal to max, वो वाला? हाँ, सी बेटा, इनिशियली मेरा टॉप 0 था। Yes sir. तो जब मैं एलिमेंट पुश करूंगा चेक करूंगा इज टॉप इक्वल टू मैक्स, नो, इसका मतलब वो फुल नहीं हुआ है ना बेटा। जस्ट इमेजिन टॉप मेरा 5 हो गया है और मैंने नहीं सर, अगर मतलब मैंने वो कंडीशन डाला ही नहीं कि स्टैक ओवरफ्लो रिटर्न हो ना, देन इट विल गिव यू एरर। ओके ओके, फिर वो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, because you are trying to access some memory. See, it is an array. If you are trying to access a memory which is outside the scope of an array, then it is an overflow, memory overflow. Your program will terminate बेटा। ओके सर। Are you Sir? everyone? हाँ बोलो बेटा। सर स्टैक में तो फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है ना? हाँ, तो अभी अगर इधर से हमको एलिमेंट्स बाहर निकालने हैं तो पहले तो 10 आएगा ना सर? नहीं बेटा, टॉप किधर है? 5 पे। टॉप, मैंने आपको बोला इंसर्शन टॉप पे होता है, डिलीशन भी टॉप से होता है। टॉप 5 पे है तो जो 5 पे है वो पहले डिलीट होगा। यस सर, यस। समझ गए? मैं आ रहा हूँ ना बेटा, अभी तो मैंने एक ही फंक्शन लिया ना। सेकेंड फंक्शन इज, कैन आई टेक सेकेंड फंक्शन? यस। Yes, sir. Second function is, the name of the function is empty. To the function I am going to pass the stack and it is going to return me an integer value. Is empty is a function which will return me integer value 1. अच्छा, stack empty होगा मतलब top 0 होगा तभी stack empty होगा। यस सर। Yes, sir. तो अगर मैंने इज एम्प्टी फंक्शन को बोला, इज एम्प्टी फंक्शन, मैं तुम्हें एक स्टैक देता हूं, बताओ ये एम्प्टी है या नहीं, वो पूछेगा। अगर टॉप 0 होगा तो वो रिटर्न करेगा 1। 1 मतलब अफर्मेशन, हाँ स्टैक एम्प्टी है। अगर टॉप 0 नहीं हुआ तो क्या रिटर्न करेगा? 0, नहीं, स्टैक एम्प्टी नहीं है। You got it? यस। Yes, sir. Stack is not empty. Are you sure everyone? Okay. Now let me use
third function, which is very nice. I want to delete from the stack. So the name of the function is pop function. I want to delete something from the, acha, see, listen here. What element I will push into the stack, I will specify that element. But I cannot choose which element will be popped from the stack. The element at the top only will be popped. I cannot control. I cannot say 30 should be removed. If I do this, then it is no longer a stack. You got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So देखो, pop, and it is going to return me an integer value because it is an array of integer. So ये जो है वो return type है बेटा. Suppose we have something like this. This is my stack. Suppose my top is here, like the way we had. Here 50, 40, 30, 20, and 10. And this is my stack as my top is right now at 5. Can we start? Yes, sir. I called, please everyone, just be with me. I called a pop function. पॉप फंक्शन को मैंने कॉल किया, तो जो भी टॉप पे होगा, स्टैक में जो भी टॉप पे होगा वो हम किसी एलिमेंट को दे देंगे. एग्जाम्पल, तो एलिमेंट को बताइए किसका वैल्यू मिला. टॉप पे कौन है? 50. एलिमेंट को 50 मिला बेटा. Yes. ये अब नया टॉप कौन हो जाएगा बताओ? 40. यानी टॉप शुड डिक्रीमेंट. Yes, sir. सपोज ये चला गया, वो जाता नहीं बट सपोज वो चला गया. नाउ न्यू टॉप इज व्हाट? 40. And we will return the element value. It will return 50. Na? So first time when you called pop, it returns 50 and it will decrement the top to the next position 4. नहीं समझा? समझा सर. Now suppose again you called pop, so this thing will repeat again. अगेन जो भी टॉप पे होगा वो एलिमेंट को मिलेगा. टॉप पे कौन है? 40. अब मेरा टॉप क्या हो गया? 3. And it will return 40. Again I called pop. अब टॉप पे कौन है? 30. तो एलिमेंट विल बी 30. टॉप डिक्रीमेंट्स. टॉप becomes 2. And it will return 30. Again I called pop, so element will be 20. Top becomes 1 and it will return 20. I hope I'm okay. I'm able to convince you. Now top is at 1. So again, what is element? 10. Now top becomes 0 and it will return 10. Okay. Okay, yes or no? Yes sir. Sir, Now, हाँ बोलो बेटा. सर पर करना क्यों है ये सर? करना क्यों है मतलब? टॉप 4 निकालना, 3 क्यों निकालना है? अरे बेटा हम अभी एप्लीकेशन ऑफ स्टैक करेंगे ना, करेक्टनेस ऑफ पैरेंथेसिस. एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. चल, तूने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा.
बताइए एक्सप्रेशन राइट है क्या? नहीं मालूम। नहीं मालूम? अरे करेक्टनेस ऑफ पैरेंथेसिस तो देख, रॉन्ग है बेटा। क्यों रॉन्ग है? देखो ए बी में एक और चाहिए। ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये इसका नहीं है। तो जब हाँ। आप ऐसे एक्सप्रेशन कंप्यूटर को दोगे तो रॉन्ग देगा कि नहीं? यस सर, रॉन्ग देगा कि नहीं? देगा, रॉन्ग देगा। अब एक बात बताओ, कंप्यूटर के पास दिमाग है क्या? वो क्या करेगा देखो जरा, वो क्या करेगा देखो जरा, वो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? स्टैक। लेफ्ट पैरेंथेसिस मिला पुश, लेफ्ट पैरेंथेसिस मिला पुश, राइट मिला पॉप, राइट मिला पॉप, स्टैक इज एम्प्टी, यानी सब बराबर था। समझा क्या? यस यस सर। वापस क्या मिला? लेफ्ट पुश, वापस क्या मिला? राइट पॉप, वापस क्या मिला? राइट, राइट मिला, लेकिन पॉप के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या हो गया? हाँ समझा? सर। समझा क्यों करना है? यस सर यस। तो ये सब जादू नहीं है, ये सब स्टैक है, ये जो असली में होता है। आई थिंक आई कैन रब दिस ऑफ। Yes, sir. I hope I'm able to convince you why are we doing this? Sir, one more thing. हाँ, Sir, a while ago you made us understand that हमने जो भी पढ़ा था कि arrays को इंडेक्स नंबर्स होते 0 1 वो सब झूठ था। तो यहाँ पे भी स्टैक को हम जो दे रहे हैं 1 2 3 ये भी मतलब हमें आगे चल के पता चलेगा क्या कि ये भी गलत नहीं, क्योंकि कि तुम्हें ये ऑलरेडी सुनो, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी एक झूठ पता है, मैं उस झूठ का यूज कर रहा हूं। सी, ये इंडेक्स मैंने तुम्हें क्या बोला? झूठ नहीं है। झूठ का मतलब तुमको क्या लगता है कि रैम में ऐसा 012 लिखा हुआ है, वो झूठ है। हम 012 होता है ये सच है, लेकिन उधर 012 है नहीं। वो इट्स लाइक दिस, हम बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट मीन्स 1, सेकेंड फ्लोर ऑफ माई अपार्टमेंट, सेकेंड मीन्स बेस प्लस 2, बराबर ना बेटा? यस सर। हाँ, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि एरे में ऐसा 012 लिखा हुआ होता नहीं है, वो ऐसा बिहेव होता है, बट इट इज नेवर रिटन लाइक दिस इन योर मेमोरी। जब आप रैम का एलोकेशन देखोगे ना, इट इज ऑलवेज एड्रेस, इट इज नेवर इंडेक्स। सी, लेट मी, ओके, सर यू वांट, मतलब बेस एड्रेस होगा और फिर उससे मतलब +2 एक मिनट, शुड आई गो इन डिटेल? इट विल नीड ओनली 2 minutes, शुड आई गो इन डिटेल? यस सर। ओके, ऐसा होता है। देखो, आपने ये एरे बनाया, एक्चुअली मैंने एरे में ये सब बताया, मुझे मालूम होता है कि आगे, मुझे मालूम रहता है बच्चों को आगे जाके दिक्कत होती है। तुम जब लिखते हो ना int A5, ऐसा होगा, बस ऐसा होता है, ऐसा कोई 0 1 2 3 नहीं होता है। हम 0 1 2 3 लिखते क्यों? ध्यान देना, हम लिखते हैं a of 0, a of 0 मतलब क्या? एड्रेस ऑफ a of 0। याद है स्कैनफ में लिखते हैं ना, स्कैनफ एम्परसेंड a of I, यस। ampersand a of 0 is nothing but a, which is nothing but 2020. I is 1, it is ampersand a of 1 means a plus 1 integer. What is a? 2020, 1 integer matlab 2 bytes, so it is 2022। ये यानी जब तुम a of 1 लिखते हो ना, तो सिस्टम को समझता है अच्छा बच्चा 2022 कहना चाहता है। 1 means 1 integer from base, 1 integer from base will be at a distance of 2 bytes। यस सर। तो I equal to 2 जब तुम लिख, ये जो डेवलपर्स है ना, उन्होंने हमारी सहूलियत के ये I 1 2 3 लिखा हुआ है। तो एम्परसेंड, व्हेन यू राइट एम्परसेंड a of 2, इट इज मींस a से 2 इंटीजर, a मतलब बेस
Base is 2020. 2 integer means 4 byte. So it is 2024. देखो, तो when you write a of 2, it is 2024. You got it? यस सर। तो हम तो और it फिर is for ऐसे मतलब सर ऐसे मतलब टॉप 2024 होता होगा और फिर फिर एक जब हम एक करके। इंक्रीमेंट करते हैं ना तो वो 2026 पे जाता है। परफेक्ट। ओके ओके समझा सर समझ। बट अभी मैं तुमको बार बार एड्रेस लिखूं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं 1 2 3 4 लिखता हूँ। ओके ओके। तो यहाँ 0 मतलब बेस से 0 इंटीजर, 1 मतलब बोलो बेस से 1 1, integer. 2 मतलब बेस Base से से 2. 2 इंटीजर, 3 मतलब बेस से 3 इंटीजर, 4 मतलब बेस से 4 इंटीजर। इसलिए तुमको टीचर बोलते हैं अरे ये n-1 पे खत्म होता है, n-1 पे खत्म होता है, कोई रूल नहीं है, बिकॉज 5 एलिमेंट है तो बेस से वो चौथा ही रहेगा ना लास्ट। यस सर। Yes, sir. Clear? I think it is clear. Yes, sir. Yes. I should remove this or I should keep this? Remove सर कर दो रहने sir. दो। रहने दूं तो मेरे को इसको अलग पेज पे रखना पड़ेगा ना बेटा। मैं इसको बाद में तुम्हें लिख दूंगा क्योंकि अपने कंटिन्यूएशन में आ जा रहा है ना, ये तो मुझे खाली एक्सप्लेन करना। डोंट वरी, अभी तो मैं बहुत पढ़ाऊंगा रे पगले, तुम्हें एकदम परम मोक्ष की प्राप्ति होगी, तुम उसको टेंशन ही मत लो। यू जस्ट डोंट वरी, I will make you perfect in DS like anything. Your DS knowledge, I promise, अगर आप मेरा सारा लेक्चर बैठोगे, it will be better than many of the teachers across the university. I mean it. मैं ऐसा ओवर नहीं बोल रहा हूँ, but yes, I will go to that depth. तो यहाँ तक सब ठीक है। Now just have a look. Top becomes 0 here. Yes, sir. Now if I attempt to call pop again, will it be okay? No, because there is no element in my stack. Why are you calling pop? Yes or no? Yes, sir. Yes. तो हम क्या बोलेंगे, अगर टॉप इक्वल टू 0 है, टॉप अगर 0 है तो क्या बोलने का, प्रिंट stack is empty. और यहां से कंट्रोल रिटर्न करो। अगर 0 नहीं है तो आगे का कार्यक्रम करो। नहीं समझा? So moral of the story is whenever we are removing element from the stack, we should check वो empty तो नहीं, and whenever we are pushing element into the stack, we should check अगर वो full तो नहीं हो गया है। नहीं समझा? समझा समझा सर। sir. now point ये है कि बेटा empty के लिए तो ऑलरेडी मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है is empty, तो why can't I use is empty directly here? तो मैं टॉप इक्वल टू 0 क्यों बोलूं? क्योंकि टॉप इक्वल टू 0 पे ऊपर डिसीजन है ना। सी, तो मैं क्या लिखता हूं, इफ is empty function of stack returns me 1, then we will say stack underflow. और is empty Yes. 1 कब रिटर्न करेगा, जब Stack is empty. Okay. टॉप इज 0। Yes. नहीं समझा, लगता है थक गया। समझा सर। समझा समझा सर। पक्का? हाँ Yes, सर। हाँ सर। चलेगा। वी विल स्टॉप आवर लेक्चर टुडे क्योंकि काफी सारा पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, तुम थोड़ा एक बार रिवाइज करो, ठीक है? इज इट ओके? Yes sir. Yes. Yes, sir. यस सर। लेट मी डाउनलोड योर अटेंडेंस। आई होप आपको जो भी पढ़ा है समझ में आया होगा। एकदम मस्त सर। यस, गुड। मजा आ गया सर। Yeah, and it is, I mean, frankly speaking, there is no subject better than ये और जावा। ये तो ऐसा सब्जेक्ट है ना, तुमको परम मोक्ष मिलेगा। ये तो सब्जेक्ट अच्छे से अगर नौकरी लग जाएगी यार। हाँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। तो लेट मी सेव योर अटेंडेंस वेयर,
in my D drive in my odd 2021 और क्या किधर गया D drive और 2021 में DSCMPN में let me create new folder जिसका नाम मैं रखता हूँ अटेंडेंस और मैं यहाँ सेव करता हूँ लेक्चर 1 डेट क्या है 02 September .csv you know what is CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जब आप डेटा साइंस में काम करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा यस लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग तो तुमको अवेलेबल रहेगा ही